Praise the Lord. Yesterday we studied that the coming of the Lord is very, very near. कल हमने सीखा था कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है And before the coming of the Lord, there should be one world government, one world religion, and one world economy. और प्रभु के आगमन के पहले पूरे संसार में एक ही सरकार होगी, पूरे संसार में एक ही धर्म होगा और पूरे संसार में एक ही अर्थव्यवस्था होगी. So that Antichrist may just sit in one place and will be able to control the whole world. और मसीह विरोधी एक ही स्थान में बैठ के पूरे संसार के ऊपर वो नियंत्रण कर सकेगा. Yesterday we studied about the biochip. कल हमने बायोचिप के बारे में ध्यान किया We था understood how with the number 666 Antichrist will be able to control the whole world. और आपने जाना किस प्रकार से 666 के अंक के द्वारा मसीह विरोधी सारे संसार को नियंत्रित करेगा. In Revelation 13:7 we read that those who are rejected, those who could not be caught up at the coming of the Lord also, they are called as saints. और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 7वें वचन में हमने देखा जो लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए नहीं जा सके, जो हाथ छोड़े गए थे, वे लोग भी पवित्र लोग कहलाए थे. In every church there are sincere people. और एक कलीसिया में सच्चे लोग हैं. All those who are cleansed by the blood of Jesus, they are called as saints. जो कोई यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं वे पवित्र लोग कहलाते हैं. But to be caught up at the coming of the Lord, if you are saints, if you are only cleansed by the blood of Jesus, that is not enough. लेकिन प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए केवल पवित्र लोग बनना अर्थात केवल यीशु के लहू के द्वारा धोए जाना काफी नहीं. We should receive Holy Spirit. Receiving Holy Spirit is a must. पवित्र आत्मा पाना भी अनिवार्य है. And we have to surrender ourselves to the Holy Spirit and live a holy life. पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए एक पवित्र जीवन बिताना भी आवश्यक है. We should never grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को हम कभी भी शोकित न करें. We should receive Holy Spirit with the sign of speaking in unknown tongue. अन्य भाषा के चिन्ह के साथ हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना The चाहिए. experience we read in Acts 2 should be our experience also. प्रेरितों के काम 2 अध्याय का जो अनुभव है वो हमारा भी अनुभव होकर दिखाई देना If we चाहिए. do not receive Holy Spirit, Jesus may come, but we may not be caught up at the coming of the Lord. यदि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाते तो यीशु तो आ जाएगा लेकिन हम उसके आगमन में उठा लिए नहीं जा Suppose we सकेंगे. are not caught up at the coming of the Lord. मान लीजिए यदि हम प्रभु के आगमन में उठा लिए नहीं जाते तो At that time, the only way to go to heaven is to die as martyrs. उस समय स्वर्ग में जाने का केवल एक ही मार्ग होगा अर्थात शहीद होकर मरना. So the tribulation will be terrible at that time. उस समय का क्लेश भयंकर होगा. Bible says the tribulation of that time will be worse than all the tribulation through which the Christian went through all these years. पवित्र शास्त्र कहता है कि इतने सारे वर्षों में मसीह लोग जिन प्रकार की क्लेशों में से होकर गुजरे उन सभी से भयंकर उस समय का महाक्लेश होगा. We cannot say that we can stand those tribulations. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम उन पर क्लेशों में खड़े रह सकेंगे. So many trials will come. बहुत सी परीक्षाएं आएंगी. Even the robots will be torturing us. जो यंत्र मानव है वे भी हमें सताते A रहेंगे. robo can just press our body वो जो यंत्र मानव है वे हमारे शरीर को ऐसे ही दबा देंगे and all the bones will be broken. और सारी हड्डियां टूट जाएंगी. We will have internal bleeding. अंदर अंदर रक्तस्राव होगा. You cannot stand. हम खड़े नहीं रह You will पाएंगे. have severe pain. हमें भयंकर दर्द होगा. And you have to suffer like that and die. Suffer like for many days and then die. ऐसे कई दिनों तक कष्ट उठाकर हमको मरना होगा. It will be a terrible experience. वो एक भयंकर अनुभव होगा. Nobody can boldly say that, yes, I will stand. कोई भी ऐसा हिम्मत से नहीं कह सकते कि मैं खड़े रह सकूंगा. But the only way of going to heaven after the coming of the Lord is that we have to die as a martyr. प्रभु के आगमन के पश्चात स्वर्ग में जाने का केवल एक ही मार्ग रहेगा, शहीद होकर मरना. Recently, the mouth and eye of a small girl was stitched because she spoke about Jesus and read Bible. हाल ही में एक छोटी सी लड़की ने यीशु मसीह के बारे में बातचीत की और उसने बाइबल को पढ़ा, इसलिए उस लड़की के हाथ और उसका मुंह जो है वो कुछ मरोड़ दिया गया. Then somebody came and helped her. फिर किसी ने आकर उसकी सहायता की. They removed the stitch. उसके जो टांके हटाए गए. As soon as the stitch was removed, she said, I love Jesus. जैसे उसके मुंह के टांके हटाए गए उसने तुरंत कहा मैं यीशु से प्रेम करती हूँ. But saying like that is not so easy. ऐसा कहना इतना आसान नहीं. Like that we have to go through many tribulations. ऐसे कई क्लेशों में से होकर हमको जाना In होगा. one place they caught hold of a Christian एक स्थान में एक मसीही व्यक्ति को पकड़ लिया गया and they took very long nails और लंबी कीलों को लेकर and pierced it, hammered it inside his head one by one. एक एक करके उसके सिर में उसे ठोंक दिया. 4-inch nail. Just imagine how much pain it will give. कल्पना करके देखिए 4 इंची कीलों से कितना दर्द हुआ होगा. They went on nailing him. वो उसको ऐसे कील ठोकते रहे. They inserted many nails. बहुत सारी कील उसके सिर में लगा He दी. was shouting with pain. वो दर्द से चिल्ला रहा था. They did it till he died. उसके मरने तक वे ऐसा करते रहे. So like that, many Christians went through so many sufferings. ऐसे कई मसीही लोग कई तरह के क्लेशों में से गुजरे हैं. In Russia, in one place, रूस में एक स्थान में when Russia
captured Romania, जब रूस ने रोमानिया को अपने कब्जे में कर लिया था, there was a sincere soldier, he was a Christian. वहां पर एक सच्चा सैनिक था जो मसीही था। Russians, all the communists believe that there's no God. जो रूसी लोग, जो साम्यवादी लोग, जो विश्वास करते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, Because he was so sincere, the officers started troubling him one by one. और क्योंकि वो इतना सच्चा था इसलिए उसके अधिकारी उसको एक एक करके सताने लगे। But he will be very faithful in his duty, वो अपने कामों में बहुत ही विश्वास योग्य था, but he will never obey the officers to deny Jesus. लेकिन यीशु का इनकार करने के लिए जब अधिकारी उससे कहते थे वो कभी उनकी आज्ञा नहीं मानता था। Finally, he came across a very tough officer. अंत में उसको एक बहुत ही सख्त अधिकारी मिला। He challenged that I will make this boy to obey. उन्होंने चुनौती दी कि मैं कैसे भी इस लड़के से आज्ञा मानवाऊंगा। He took him to a separate place उसको एक अलग स्थान में ले गया, and arranged somebody to drill in his heart. उसके हृदय में छेद करने के लिए किसी को ऐसे प्रबंध करके He दिया। thought, I will drill it. They will drill him. उसने सोचा कि मैं ऐसे उसके हृदय में छेद करूंगा, When they drill, he will be afraid. और वो छेद करते करते वे डरने लगे। Then before it touches the heart, they will stop. हृदय को छूने के पहले वे रोक देते थे। That was arrangement. ऐसा एक प्रबंध किया गया था। They started doing it. वे ऐसा करने लगे, They started drilling in the chest. उसके सीने में इस प्रकार से चुभोने लगे। He was just saying, praise the Lord, and bearing everything. वो प्रभु की स्तुति करते हुए सब कुछ सहता रहा, By mistake, the drill bit went and touched the heart. और गलती से जब उनका वो छेद करने का इस प्रक्रिया से वो हृदय को जाकर जब छू लिया, He died on the spot. वो वहीं पर मर गया। But already God has revealed him that he will die as a martyr. परमेश्वर ने उसको पहले ही प्रकट किया था कि वो शहीद होकर मरेगा। Before that, God showed him New Jerusalem in a vision. उसके पहले परमेश्वर ने उसको दर्शन में नए यरूशलेम भी दिखाया, And the angels told that if you die like this, you will go to New Jerusalem, which is a very glorious place. और स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि यदि तू ऐसा मरेगा तो महिमा में स्थान नए यरूशलेम में जा पाएगा। But we cannot say that we all shall be standing very bold and suffer for Jesus. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब हियाव के साथ खड़े रहकर मसीह के निमित्त कष्ट उठाएंगे। Now itself we should receive Holy Spirit and get ready for the coming of the Lord. अभी हमें पवित्र आत्मा पाकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाना If you चाहिए। do not accept the mark, यदि हम उस चिन्ह को स्वीकार नहीं the करेंगे tribulation will be only for maximum 3.5 years. कि हमारा जो क्लेश है केवल सबसे अधिक 3.5 वर्षों तक ही रहेगा। But if you die as a martyr, परंतु शहीद होकर यदि हम मरेंगे तो Jesus will come again at the end of the third year, 3.5 year. वो 3.5 वर्षों के अंत में यीशु दोबारा आएंगे, And all those who died for Jesus as martyr, they will be taken up in the clouds. और जो लोग यीशु के लिए शहीद होकर मर गए हैं वे बादलों में उठा लिए This जाएंगे। time Jesus will be coming openly in the mid-air. उस समय जो यीशु मध्य आकाश में खुले रूप से आएगा। And another blessing is that, और एक आशीष जो है according to Revelation 15 verse 2, प्रकाशित वाक्य 15:2 के अनुसार, those who take victory over the beast जो इस पशु के ऊपर जय पाते हैं and refuse to take the mark and the number of his name, और पशु का अंक को और उसके छाप को लेने से इनकार कर in देते verse हैं, 2 we read that they will stand near the sea of glass having the harps of God. और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े होने का मौका It मिलेगा। will be a special glorious reward for such people. ऐसे लोगों के लिए एक विशेष महिमा में प्रतिफल होगा। Not only that, केवल इतना ही नहीं, though you may not be ready for the coming of the Lord, because of that you would have been rejected. शायद आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं रहे होंगे इसलिए आप हाथ छोड़े गए होंगे, But if you die as a martyr, परंतु यदि आप शहीद होकर मरते हैं तो according to Revelation 20 verse 4, प्रकाशित वाक्य 20:4 के अनुसार after the coming of the Lord, प्रभु के आगमन के पश्चात, after 7 years in this tribulation in this world, इस संसार के 7 वर्ष के क्लेशों के पश्चात our Lord Jesus will come to this world, प्रभु यीशु जब इस संसार में आएंगे, and keeping Jerusalem as the capital, he will be ruling the whole world. यरूशलेम को राजधानी के रूप में रखते हुए वह सारे संसार पर राज्य करेगा 1,000 years. 1000 वर्षों It तक। is called a millennium. वो 1000 वर्ष का राज्य At the कहलाता time है। nobody will fight. उस समय कोई लड़ेगा There will be नहीं, perfect peace. पूर्ण शांति रहेगी No evil will be done against the women. और स्त्रियों के विरोध में कोई बुराई नहीं There will be होगी no police station, no AK-47. और कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा, कोई AK-47 Even नहीं the होगा animals will not fight with one another. और पशु भी आपस में एक दूसरे से नहीं Even लड़ेंगे। a dog will not bark against another dog. एक कुत्ता भी दूसरे कुत्ते के विरोध में नहीं It भौंकेगा। will be a pleasant and peaceful rule for 1,000 years. 1000 वर्षों तक वो एक शांतिमय आरामदायक राज्य होगा। If Adam had not disobeyed God, how this world would have been? यदि आदम ने आज्ञा न मानी होती, यदि आदम ने आज्ञा मानी होती तो वो राज्य फिर कैसा रहता? It will be like that. वो वैसा ही होगा। We can say it is like the Garden of Eden. हम कह सकते हैं कि अदन की वाटिका के समान एक Everything will जीवन be होगा, plentiful. सब कुछ बहुतायत से You need होगा। not suffer to earn money.
आपको पैसा कमाने के लिए कष्ट उठाने की If आवश्यकता you नहीं want to go होगी। any part of this world, you can go at any time. संसार के किसी भी भाग में आप कभी भी जा सकेंगे। If you die as a martyr यदि आप शहीद होकर मरते हैं at तो the time of tribulation, क्लेश के समय, in verse 4 we read that such people who did not accept the mark of the Antichrist and die, they will also come alive and they will reign with Christ for 1,000 years. चौथे वचन में हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी जीवित होंगे और वे लोग 1000 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ मिलकर राज्य करेंगे। So let anything happen, do not deny Jesus. इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यीशु का इनकार न करें। Bear all the suffering and die as a martyr for Jesus. सारे कष्टों को उठाते हुए यीशु के लिए शहीद होकर मरे। And those who take the mark of the Antichrist also, और जो मसीह विरोधी के अंक को ले लेते हैं, they will be comfortable only for 3.5 years. उनको केवल 3.5 वर्षों तक आराम मिलेगा। After that, they also will be in trouble. उसके पश्चात वे भी संकट में जाएंगे। Even Antichrist himself will be in trouble. मसीह विरोधी स्वयं भी संकट में पड़ जाएगा। He can rule only for 7 years. वो केवल 7 वर्षों तक राज्य कर If पाएगा। you read chapter 16 of Revelation, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ने से verse 2, we read that. दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, Please read. पढ़िए। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. So for first 3.5 years, there will be tribulation for the Christians. पहले 3.5 वर्षों तक मसीही लोगों के लिए उपद्रव होगा। It will be through the Antichrist. वो मसीह विरोधी के द्वारा होगा। And the second 3.5 years, it is called as the Great Tribulation. अगला 3.5 वर्ष जो महाक्लेश कहलाता है, It will be from God. वो परमेश्वर की ओर से होगा। Stars will fall upon this earth. इस पृथ्वी पर तारे गिरेंगे, The temperature of this earth will increase. पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। We have already studied about the biochip. हमने बायोचिप के बारे में पहले ही पढ़ा है। It can work nicely up to 65-70 degree. वो 65 या 70 डिग्री तक अच्छे से काम कर सकता है। When the temperature increases more than that, अगर तापमान उससे भी अधिक हो जाए the battery, the lithium battery in the biochip will burst. तो जो बायोचिप के अंदर दिखाई देने वाली लिथियम की जो बैटरी है, वो उसका विस्फोट हो And the जाएगा। chemical will spread throughout the body. शरीर के अंदर वो पूरा रसायन फैल जाएगा। It will burn the cells of our body. वो शरीर की कोशिकाओं को जला देगा। The temperature of the body will increase very high. शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा And it will cause very big sores in the body of men with a very bad smell. और जो मनुष्य के अंदर बहुत ही दुखदायी फोड़े निकलेंगे जिसमें से बहुत दुर्गंध आएगी। They also will be in trouble. वे भी संकट में होंगे। And another thing, और एक बात, when all these things happen, जब ये सारी बातें होती है, Antichrist will not care. मसीह विरोधी चिंता नहीं करेगा। His own people will be suffering, but he will be very happy उसके अपने लोग कष्ट उठाते होंगे लेकिन ये आनंदित होगा, because his aim is that he should take everybody to hell. क्योंकि उसका लक्ष्य यही है कि सबको वो नरक ले जाए। So then what will happen? तब क्या होगा? He also in trouble at the end of the 7 years. 7 वर्ष के अंत में वो भी संकट में पड़ जाएगा। Now there is something by name solar storm. और ऐसी सौर्य आंधी करके कुछ है। Now there are weak parts in the sun, the surface of the sun. सूर्य के सतह पर कुछ कमजोर भाग दिखाई देते Due to हैं। some internal magnetic reaction in the sun, सूर्य के अंदर दिखाई देने वाले भीतरी चुंबक के जो प्रतिक्रिया के कारण pressure increases inside, अंदर दबाव बढ़ता है and something in the form of plasma, it comes out of the sun. और सूर्य के अंदर से कुछ तरल पदार्थ निकलता है। It will be 10,000 degree to 1 lakh degree centigrade. उसका जो तापमान है वो 10,000 डिग्री से 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड It तक comes होगा। out very fast वो बहुत तेजी से निकलता है and spreads everywhere like a storm. और वो एक आंधी के समान सभी जगह फैल जाता है। It comes near the earth also. वो पृथ्वी के निकट भी आता है Sometime it has already come towards this earth. और कभी कभी तो वो पृथ्वी के निकट आया भी है। In January 2012, जनवरी के महीने 2012 में because such storm came towards America, अमेरिका की तरफ ऐसी एक आंधी आई थी। one day 1,700 airplanes were cancelled. एक दिन 1700 विमानों को रद्द किया गया था। There is a airlines by name Delta Airline. They cancelled all their airplane on the day. जो डेल्टा एयरलाइंस है उन्होंने अपने सारे विमानों को उस दिन रद्द कर दिया था। In 2003 also this storm came. 2003 में भी ऐसी एक आंधी आई थी, That also in the side of America. वो भी अमेरिका की एक दिशा में थी। And 47 satellites were completely burnt. उसके कारण जो 47 उपग्रह थे वो पूरी तरह से जल गए। There was a loss of $700 million. $700 मिलियन की नुकसान हुआ। In 1989,
1989 में it came and attacked the earth only for 90 seconds. केवल 90 सेकंड के लिए पृथ्वी पर आकर उसने हमला किया। All the electrical or the power station, they were stopped. They failed. तब विद्युत के जो भी पावर स्टेशन थे वो सब असफल हो गए। It took few days to reconstruct them and make them to operate again. दोबारा उसको सुधार कर सही करने में कुछ दिन लग गए। Now they are expecting a super solar storm. अभी वो इस प्रकार से एक बड़ा सौर आंधी की अपेक्षा कर रहे May हैं। come at the speed of 5 million kilometer per hour. वो 1 घंटे में 5 मिलियन किलोमीटर की रफ्तार से आएगा। The velocity of the storm is increasing every year. प्रति वर्ष इस जो आंधी की रफ्तार है वो बढ़ती जा After रही the है। coming of the Lord, प्रभु के आगमन के when पश्चात the temperature increases more, जब तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, it will come with a very high velocity. वो बहुत ही तेज गति में आएगा। So when it comes near the earth, जब वो पृथ्वी के निकट आएगा, all the satellites of this world shall be burned, संसार के सारे उपग्रह जल जाएंगे। and none of the power station will be working. फिर कोई भी पावर स्टेशन काम नहीं There करेगा, will be no current, विद्युत नहीं होगा, no internet, कोई इंटरनेट काम नहीं no करेगा, cell phone will not work, सेल फोन काम नहीं करेंगे, computers will not work. कंप्यूटर काम नहीं You करेंगे, cannot do anything through the website. आप वेबसाइट के द्वारा भी कुछ कर नहीं Now पाएंगे। Antichrist will be controlling the whole world using internet and website. इंटरनेट और वेबसाइट के द्वारा मसीह विरोधी को सारे संसार में नियंत्रण And करेगा। everybody suffer, he will be staying in AC rooms and enjoy. जब सभी लोग कष्ट में होंगे तब वो एसी रूम में रहकर वो आनंदित होगा। But when super solar storm comes, लेकिन जब ये बड़ी सौर आंधी आएगी, when all the satellites will be burnt, जब सारे उपग्रह जल जाएंगे, he also will be in trouble. तब वो भी संकट में पड़ जाएगा। In 16:10 we read that, 16:10 में वो हम पढ़ते हैं, and his kingdom was full of darkness, उसका राज्य में पूरा अंधेरा छा गया, and he and his companion they gnawed their tongue because of pain. और वो और उसके लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। He also will be in trouble. वो भी संकट में पड़ जाएगा। Then he and the false prophet they will be taken alive and they will be dropped in the lake of fire. उसको और झूठे भविष्यद्वक्ता को जीवित ही पकड़कर आग की झील में डाल दिया जाएगा। So never take the mark of the Antichrist. इसलिए कभी भी मसीह विरोधी के अंक को धारण नहीं Your करना। suffering will be only for 3.5 years. आपका जो कष्ट है केवल 3.5 वर्षों का होगा। If you bear it and die as a martyr, यदि आप उसे सहते हुए शहीद होकर मर जाएंगे when our तो Lord Jesus rules in this world for 1,000 years, you can also along with him rule this world as a ruler. तब यदि जब यीशु बाद में 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करने आएगा तो आप भी उसके साथ मिलकर अधिकारी होकर राज्य कर सकेंगे। So best thing is receive Holy Spirit and pray always and get ready for the coming of the Lord. इसलिए श्रेष्ठ बात यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। And if you cannot be caught up at the coming of the Lord, यदि आप प्रभु के आगमन में उठा लिए नहीं जाते तो let any suffering come, die as a martyr, कितना भी क्लेश क्यों ना आए आप शहीद होकर मर जाएं, so that you can have a better reward when you go to heaven. ताकि स्वर्ग में जाने के समय आपको एक उत्तम प्रतिफल मिले। Not only that, you can come again and rule this world for 1,000 years. इतना ही नहीं, आप इस पृथ्वी पर आकर 1000 वर्षों तक फिर राज्य कर पाएंगे। Our God is a merciful God. हमारा परमेश्वर दयालु He is a परमेश्वर God of है, love. वो प्रेमी परमेश्वर He है, wants us all to rule. वो चाहता है हम सब राज्य करें। So shall we shout hallelujah for that? उसके लिए आइए हम मिलके हालेलुया बोले। Hallelujah. So now itself we must rule over everything. इसलिए अभी हमें सबके ऊपर राज्य करना We है। should allow God to rule our body, soul and spirit. हमारे आत्मा प्राण और शरीर के ऊपर परमेश्वर को राज्य करने के लिए हम अनुमति दें। Then when the trumpet sound, we shall be caught up at the coming of the Lord. ऐसा है तो जब नरसिंगा फूका जाएगा हम प्रभु के आगमन में उठा लिए जा सकेंगे। And there is everything is getting ready for a third world war also. तीसरे विश्व युद्ध के लिए सारी तैयारियां हो रही है। If we have enough time, we will study about that. हमारे पास पर्याप्त समय होने से हम उसके बारे में बाद में Now we are सीखेंगे। going to study as to how things are getting ready in this world for a one world economy. आज हम देखेंगे किस प्रकार से पूरे संसार में एक ही अर्थव्यवस्था के लिए कैसी तैयारियां हो रही है। As long as use of cash is there, जब तक मुद्रा का रुपए का इस्तेमाल होता है there are chances of corruption. तब तक भ्रष्टाचार की कई संभावनाएं There are रहती हैं chances of black money. और काला धन की संभावना रहती है। What is meant by black money? काला धन कहने से क्या है? Undisclosed income ऐसा वेतन जिसके बारे में किसी को बताया ना गया हो, or undisclosed assets. नहीं तो ऐसी संपत्ति जिसको के बारे में कोई जानता ना हो। A person may earn 1 lakh rupees every day by in his business, एक व्यक्ति अपने व्यापार में शायद 1 लाख रुपया प्रतिदिन कमाता होगा, but in the account he can show only 10,000. लेकिन वो अपने खाते में केवल 10,000 दिखाता है। So 90,000 he may not show.
वो 90,000 वो नहीं दिखाता So होगा, the government will not be getting the tax for that. सरकार को उसका टैक्स नहीं मिलता। In that way, government is losing so much of money. इस प्रकार से सरकार को बहुत पैसा नष्ट होता So है। when our Prime Minister announced demonetization, इसलिए जब हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी, India was using 95% transaction only by money. भारत में देखने से 95% जो आदान प्रदान है वो रुपए के द्वारा होता था। Demonetization is a good plan. विमुद्रीकरण कहने से एक अच्छा योजना थी। By that, black money was mainly the black money which was in the hand of terrorists came under control. और उसके कारण आतंकवादियों के हाथ में विशेष रूप से दिखाई देने वाला काला धन नियंत्रण में हुआ। But government did a mistake. लेकिन सरकार ने एक गलती कर दी। It could not supply all the needed cash in the right time. सही समय पर पर्याप्त पैसे को वो दे नहीं पाई, So people were in trouble. इसलिए लोग संकट में पड़ They गए। were standing on the queues for the long time. कई लंबे समय तक वे कतारों में खड़े रहे, Many died also. कई लोग उसके कारण मर भी गए। But that also turned to be a blessing for India. लेकिन वो भी भारत के लिए एक आशीष का कारण बन गया। India never expected it will happen. भारत ने तो कभी अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा होगा। India is the country, the least country where there are chances of cashless transaction. भारत में जो है ऐसे एक देश है जहाँ पर मुद्रा रहित आदान प्रदान की संभावना बहुत कम रहती है। 95% transaction was under with cash only. 95% आदान प्रदान सब रुपए के द्वारा ही होता था। But when they could not supply the enough money, लेकिन जब वे पर्याप्त पैसा नहीं दे पाए, government started encourage the people to use the cards. तब सरकार ने लोगों को कार्ड लेने के लिए प्रोत्साहित किया। They have many facilities also. उसके द्वारा उनको कई सहूलियतें भी They said मिली। if you book the ticket online, you will get 0.5% of discount. उन्होंने कहा कि यदि आप ऑनलाइन टिकट को बुक करेंगे तो आपको 0.5% आपको इसका डिस्काउंट If मिलेगा। you buy petrol and diesel through your card, अपने कार्ड के द्वारा यदि आप पेट्रोल या डीजल you खरीदेंगे will get some discount. उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। So like that, they announced many things. ऐसे कई बातों की घोषणा की। And if you pay the money of your insurance policy by online, यदि ऑनलाइन के द्वारा आप अपनी बीमा पॉलिसी का पैसा जमा कराते हैं, there will be 10% discount. उसमें आपको 10% लाभांश मिलेगा। Suppose you book your ticket online, यदि आप ऑनलाइन अपना टिकट बुक कराते हैं, on the way you meet with an accident and die, मार्ग में यदि आपकी दुर्घटना हो जाती है, आप मर जाते हैं, government will give you 10 lakhs rupees. तो सरकार आपको 10 लाख रुपया देगी। Like that, government gave so many new ideas. ऐसे सरकार ने कई नए विचारों को दिया। And there is a machine by name POS machine. और एक मशीन है जिसका नाम POS मशीन है। It is called as point of sale machine. वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहलाती है। It's a machine like this. ये ऐसी एक मशीन है। Earlier, government was not encouraging such people to make such machines. पहले तो सरकार लोगों को ऐसे मशीन बनाने के लिए उत्साहित नहीं करती But when थी, this problem came, परंतु जब ये समस्या आई, government started giving them subsidy. Government gave them money so that they can be encouraged to make such machines very soon. ऐसी मशीनों को जल्दी बनाने के लिए सरकार उनको पैसा देने लगी, सब्सिडी देने लगी। Like that, many things the government did. ऐसे सरकार ने कई काम किए। So people started using cards in the place of cash. इसलिए मुद्रा की जगह में लोग कार्ड का इस्तेमाल करने लगे। Now debit card, Lord, if you open an account, debit card will be given freely. अभी जब आप एक खाता खोलते हैं तो आपको मुफ्त में डेबिट कार्ड दिया जाता If है। you want a swiping machine like this, वो ऐसे एक स्वाइप मशीन रहने से in that also there is a lot of discount now. उसमें भी बहुत सा लाभांश दिया The जाता है। government encourage all the people to use cards now. अभी सरकार सभी लोगों को कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित कर रही Many है। of you may be using these machines. कई लोग ऐसे मशीनों का इस्तेमाल भी करते होंगे। You would have seen आपने देखा भी होगा, using in the shops and petrol pumps. दुकानों में पेट्रोल पंप का इस्तेमाल, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। Some may not be knowing also. शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। It's very simple now. ये तो एक बहुत साधारण बात हो If गई you है। buy things worth of 20,000 rupees, यदि आप 20,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, you need not take cash in your hands. आपको अपने हाथ में पैसा लेकर जाने की आवश्यकता You नहीं। just go to the shop दुकान में जाकर and you have to print what the amount for which you have bought things, कितना आपने रकम का सामान खरीदा है करके आपको प्रिंट करना होगा। and you have to put your PIN code. अपना पिन कोड वहां डालना होगा Which has got all the details of your account. और उसमें आपके सारे खाते की जानकारी होगी। Then you have to take your debit card.
फिर आपको अपना डेबिट कार्ड लेना होगा, Just keep it in the machine side and just swipe it. मशीन के एक किनारे पर रखकर उसको ऐसे आपको हिलाना होगा। When the card reaches to the other side of the machine, जब वो कार्ड मशीन के दूसरे छोर पर पहुंचता है, this 20,000 of your account has gone to the account of the shopkeeper. आपके खाते का 20,000 रुपया उस दुकानदार के खाते में चला जाता है। And he cannot hide anything. फिर वो भी कुछ छिपा नहीं सकता, Everything is recorded. सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता Suppose है। he is doing a business for 10 lakh in a day, मान लीजिए वो यदि एक दिन में 10 लाख का व्यापार करता है, it will be known to the government. सरकार इस बात को जान लेगी, Government will deduct the tax, सरकार उसमें से उसका टैक्स काटेगी and only the remaining things he can consider as a profit. और जो शेष बचा है उसको ही वो लाभ होकर ले सकेगा। In this case, if it is practiced fully in India, अगर ये बात पूरी तरह से भारत देश में लागू हो जाती है all तो the state government and central government, they all will get crores and crores of income. राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ मिलेगा। If the corruption comes down even by 50% in India, यदि भारत देश में भ्रष्टाचार कम से कम 50% भी कम होता है तो India will become one of the best countries in this world. भारत इस संसार में एक बहुत सर्वश्रेष्ठ राज्य बन The जाएगा। government is encouraging the online transaction very much so that they can get a lot of income also. इसलिए सरकार जो है ऑनलाइन में ऐसे आदान प्रदान को बहुत ही उत्साहित कर रही है ताकि उससे उनको भी एक इनका लाभ मिले। From 2016 December, 2016 दिसंबर से लेके Goa has become number 1 cashless society in India, cashless state. भारत देश में सबसे पहला जो राज्य है जो कि मुद्रा रहित एक राज्य है वो गोवा बन गया है। Goa. So if we have all the people are having bank account, सभी लोगों के पास बैंक का खाता रहता है, it is very easy. बहुत फिर उनके लिए आसान हो जाता Now है। they have made it much simpler. अभी उसको बहुत ही आसान कर दिया है। If you go to the shop यदि आप दुकान में जाते हैं, and buy something, आप कुछ खरीदते हैं, by your cell phone also you can do the transaction. अपने सेलफोन के द्वारा भी आप ये काम कर सकते हैं। Just press star उस स्टार को दबा के 99 दबा के and हैश दबा के and dial it और डायल करने से and follow the instructions. और उनके जो कहा जाता है उन बातों का पालन You करने can से buy and sell anything. आप कुछ भी खरीद सकते हैं और बेच सकते It हैं। has become so simple now. अभी वो बहुत ही आसान हो गया है। So now government is trying to introduce this system everywhere. इसलिए अभी सरकार सभी स्थानों में इस प्रणाली को लागू करना चाहती है। Now after demonetization was announced, विमुद्रीकरण की घोषणा होने के पश्चात now only 7 months, अभी 7 महीने ही बीते हैं, but now the usage of debit card has increased by 300%. अभी डेबिट कार्ड का जो उपयोग है वो 300% से अधिक हो गया है। In November 2016, नवंबर 2016 में India was using only 5% transaction through cards. भारत में केवल 5% कार्डों के द्वारा आदान प्रदान होता था। Now already it has become 20%. अभी वो 20% हो गया है। Now 20% of all the transactions of India is through cards. अभी भारत देश में 20% आदान प्रदान सब कार्ड के द्वारा होता है। The government is encouraging the people to use the card so much now. अभी सरकार लोगों को कार्ड लेने के लिए इतना अधिक उत्साहित करती है। So many states will become cashless very soon. अभी बहुत जल्दी बहुत से राज्य मुद्रा रहित होकर बदल जाएंगे। In Goa, गोवा में the population is only 15 lakhs. वहाँ की जो जनसंख्या है केवल 15 लाख है, But they have 17 lakhs mobile phone लेकिन उनके पास 70 लाख मोबाइल फोन है and they have 22 lakhs bank account. और 22 लाख लोगों का बैंक अकाउंट है। So it was very easy for Goa to become cashless. इसलिए गोवा को इस प्रकार मुद्रा रहित बनना बहुत आसान हो When गया। all these problems were going on during the demonetization, जब विमुद्रीकरण के समय में इतनी समस्याएं हो रही a थी, lot of problem, Allah, Gulla, Gali, everything was going on. जब चारों तरफ बहुत ही समस्या हल्ला गुल्ला हो रहा था, There was a village in Gujarat. It was so calm and quiet. गुजरात में एक गांव था जो बिल्कुल शांत था, Nobody was standing on the queue. कोई भी लाइन में नहीं खड़ा था। They were doing their business as usual. वो लोग हमेशा की तरह अपना व्यापार The करते name थे। of that village is Akadora. उस गांव का नाम है अकाडोरा। Why it was so quiet? वहाँ क्यों इतनी शांति थी? Already it had been made as a cashless village. वो गांव को पहले ही मुद्रा रहित गांव होकर घोषित किया गया था। It was arranged by Modi. मोदी के द्वारा वो सब प्रबंध He किया गया knows था। lot of wisdom about all these things. उनको इसके बारे में सब बहुत ज्ञान था। So before demonetization arranged itself, there was a cashless village. इसलिए विमुद्रीकरण के पहले ही ऐसा एक गांव हो गया था जहाँ पर मुद्रा रहित से समाज था। In this village, only 350 houses are there. उस गांव में केवल 350 घर थे।
There are only 1,300 people staying in that house in the village, उस गांव में केवल 1300 लोग रहते हैं, but they have 1,200 bank accounts. लेकिन उनके पास 1200 बैंक में खाते हैं। ICICI Bank did everything for them. उनके लिए ICICI बैंक ने सब कुछ किया। There is no police station in that village. उस गांव में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, There is no post office. वहाँ कोई पोस्ट ऑफिस नहीं, But they have become a cashless society. लेकिन अभी वो मुद्रा रहित समाज बन गए हैं। Even buying, selling, everything they are even buying milk and selling everything they do by cards only. दूध लेने के लिए, बेचने के लिए सारी बातें भी वो कार्ड से करते हैं। There was no railway station also in that village. उस गांव में कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं था, But it has become a very standard village. लेकिन अभी वो बहुत उच्च स्तर का गांव बन After गया है। demonetization, विमुद्रीकरण के पश्चात now 6 villages of India have become cardless. अभी Cashless. अभी भारत के जो 6 गांव हैं वो इस प्रकार मुद्रा रहित होकर बदल गए हैं। In Hyderabad, there was no bank in 5,000 villages. हैदराबाद में 5000 गांवों में कोई भी बैंक नहीं था, But now within the 6 months, they have opened branches, bank in all these villages. अभी 6 महीने के अंदर सभी गांवों में उन्होंने बैंक खोल दिए हैं। Now the government is trying its level best अभी सरकार अपना भरसक प्रयास कर रही है to make around 1 lakh villages cashless by the end of this year. कि इस साल के अंत तक कम से कम 1 लाख गांव मुद्रा रहित होकर बदल जाएं। I used to think earlier, मैं पहले ऐसा सोचता था, how it can become cashless? ये किस प्रकार से मुद्रा रहित होकर बदल How सकता it will है, happen in villages? ये गांवों में कैसे हो How सकता they है, will understand? वे लोग कैसे इसे समझेंगे। But now it is happening in the villages first. लेकिन अभी ये बात पहले गांवों में लागू हो रही है, Because with less population, it is very easy to introduce. क्योंकि जब जनसंख्या कम है तो ये बात को लागू करना बहुत आसान है। So we don't understand many things. हम कई बातों को समझ नहीं पाते हैं, But God knows everything. लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। See, the country which was using 95% cash, it is trying to become a cashless society now. अब वो देश जो कि 95% रुपए का इस्तेमाल करता था, अभी वो किस प्रकार से कैशलेस होता जा रहा है। In forming one world government and one world economy, India is going to play a very important role. पूरे संसार में एक सरकार, पूरे संसार में एक अर्थव्यवस्था, इस बात को लागू करने के लिए भारत भी अपना एक मुख्य भाग अदा And करेगा। China also is trying to make its country cashless. और चीन भी अपने देश को मुद्रा रहित होकर बदलने का प्रयास If कर रहा है। India and China become cashless, अगर भारत और चीन मुद्रा रहित होकर बदल जाते हैं, that means 40% of the world population has become cashless. तब इसका अर्थ यह है कि संसार की 40% जनसंख्या वो कैशलेस होकर बदल जाती And है। already there are 10 countries who are using every transaction only through cards. पहले से ही ऐसे 10 देश हैं जो सब कुछ कार्ड के द्वारा उनका लेन देन होता है। Belgium, France, Canada, Sweden, Australia, South Korea, Germany, USA, Netherlands, they are using only card. 95% they use only cards. इन देशों में 95% काम जो है लेन देन सब कार्ड के द्वारा होता है। And Denmark is a country, it has become 100% cashless. डेनमार्क ऐसा एक देश है जो कि पूर्ण रूप से 100% वो कैशलेस बन गया If है। anybody want to do any business with Denmark, they should become cashless. Otherwise, they cannot buy or sell anything from Denmark. डेनमार्क के साथ यदि किसी को कुछ व्यापार करना है, कुछ लेन देन करना है, तो उनको भी इस प्रकार से मुद्रा रहित होकर बदलना है, नहीं तो वे व्यापार नहीं कर सकते। Now, IGNOU, Indira Gandhi National Open University, अभी जो इग्नो जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, it has become cashless. वो भी कैशलेस होकर बदल गई है। Children cannot pay the fees or anything through cash. They have to pay only through card. बच्चे लोग जो है रुपए के द्वारा अपना कोई भी फीस अदा नहीं कर सकते, कार्ड के द्वारा उनको रकम अदा करना है। Orissa is not a well-developed state, उड़ीसा तो इतना विकसित राज्य नहीं है, but in the capital Bhubaneswar, लेकिन उसकी राजधानी भुवनेश्वर में, the municipal corporation, उसकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन now में, you cannot pay any cash. They have to pay everything through card only. वहां पर वे लोग रकम कुछ भी नहीं दे सकते, नगद नहीं दे सकते, अभी उनको कार्ड के द्वारा देना होगा। In Andhra, there is a place by name Ibrahimpur. आंध्रा में एक स्थान है इब्राहिमपुर, It has become cashless. वो भी कैशलेस बन गया है। Government voluntarily went and helped the people to take debit cards. और सरकार ने स्वेच्छा पूर्वक लोगों को जाकर सहायता किया कि वे डेबिट कार्ड लें। Now in barber shop also they are using only cards. अभी नाई की दुकान में भी कार्ड का इस्तेमाल होता है। In Goa, if you travel in bus, go to the vegetable shop or barber shop, everywhere you have to pay only by card. गोवा में बस में यात्रा करने से भी, सब्जी की दुकान में जाने से भी, सभी जगह कार्ड के द्वारा आपको पैसा अदा करना है। In Kerala, in all the autos, you cannot keep cash.
only you have to pay only through the cards. और केरला में सब ऑटो रिक्शा में जो है आप नगदी नहीं दे सकते, आपको कार्ड के द्वारा पैसा अदा करना You होगा। have to just put your card in the auto rickshaw. ऑटो रिक्शा में आपको वो कार्ड डालना होगा। It will show the route in which you are going also. आप किस मार्ग में जा रहे हैं वो रास्ता भी आपको दिखाएगा। Driver cannot deceive you also. वो ड्राइवर आपको धोखा नहीं दे At the end सकता। of the journey, you can remove the card. The money will be deducted according to the real running. The driver cannot cheat us in any way. और ड्राइवर हमको किसी भी तरह से धोखा नहीं दे सकता। वास्तविक दूरी कितना उसके अनुसार से वो यात्रा के अंत में उसका हमारा पैसा उसमें से If कट things जाएगा। grow like this, यदि इस प्रकार बातें बढ़ती जाएंगी I तो think by the end of this year, there are chances that 60% of the world transaction is only by cards. मैं सोचता हूँ कि इस साल के अंत तक ऐसा हो जाएगा, संसार का 60% सब लेन देन कार्ड के द्वारा ही केवल रहेगा। Sometimes it may take more time, कभी हो सकता है अधिक समय भी ले ले, but it will happen. It is going to happen. लेकिन ये होगा और होने वाला है। The whole world transaction is going to be cashless very soon. बहुत जल्दी सारे संसार का लेन देन मुद्रा रहित होकर बदल जाएगा। Already 28 countries, European countries, they are using the same cash. अभी 28 देश जो यूरोपियन देश है वो उनका सबका एक ही मुद्रा है। If they decide to use only cards, यदि वे केवल कार्ड का इस्तेमाल करने का निश्चय करेंगे 80% of this world transaction will be only in cards. तो संसार का 80% लेन देन कार्ड के द्वारा हो जाएगा। And 80%, 60% the transaction comes under card, then everybody should switch over for card transaction only. अगर 60 से 80% सब लेन देन कार्ड के द्वारा होगा फिर सभी को कार्ड इस्तेमाल करना होगा। Soon all will be using machines. बहुत जल्दी सभी लोग मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। In Hyderabad, 3 months back, हैदराबाद में 3 महीने पहले one lady was sitting in the car. एक महिला कार में बैठी थी। One beggar came and knocked at the window. एक भिखारी ने आकर दरवाजे पे खटखटाया। She brought the glass down. उसने कांच नीचे किया। He said, "Amma, I am very hungry. Give some money." उसने कहा माँ मैं बहुत भूखा हूँ मुझे कुछ पैसे दे दो। She said, "भैया पैसा नहीं, टूटा नहीं है." उसने कहा भाई पैसा नहीं है, छुट्टा नहीं है। She said, "Don't worry. You give the 100 rupees also. Anything, I will give you tuta." वो कहता है कोई बात नहीं 100 रुपया है तो भी दे दो मैं छुट्टा दे दूंगा। Then she opened the purse. फिर उसने अपना पर्स खोला। She saw there was no money. उसने देखा पैसा नहीं था। She said, "पैसा भैया पैसा नहीं है, खाली कार्ड है." उसने कहा भैया पैसा नहीं है खाली कार्ड है। कोई बात नहीं अम्मा, कार्ड दीजिए। कोई बात कोई नहीं, बात नहीं अम्मा कार्ड दे दो, मेरा स्वैपिंग मशीन में मैं स्वैपिंग कर दूंगा। मैं अपनी मशीन में स्वाइप कर लूंगा। The lady was shocked. वो महिला अचंभित हो गई। She told, "Hey, show me the machine." उसने बोला अपनी मशीन दिखाओ। She opened the bag and took the swiping machine. उसने अपना पर्स खोल के अपना मशीन दिखाई। Okay, Amma, how much you want to give? Tell me, I will swipe it. उसने कहा अम्मा कितना आप मुझे देना चाहते दे दो मैं आप उसे स्वाइप कर In दूंगा। the days to come, in the trains, beggars will be coming with swiping machine. आने वाले दिनों में ट्रेन में भिखारी लोग इस प्रकार स्वाइपिंग मशीन लेकर आएंगे। Now, if you don't want to give, we can say no change. अभी हमको देना नहीं तो हम कह सकते हैं हमारे पास छुट्टे नहीं है। But on those days, we cannot say. उस समय फिर हम नहीं कह पाएंगे। You have money, you have to give. हमें पैसा है तो हमें देना ही होगा। Now, soon, all the faithums also, there must be swiping machine. फिर बहुत जल्दी सारे विश्वास घरों में भी स्वाइपिंग मशीन रखना It होगा। may not happen very soon. ऐसा तो बहुत जल्दी नहीं But होगा, a day will happen, it will surely, day will come, it will happen surely. लेकिन जब ऐसा एक दिन आएगा जब निश्चय हो जाएगा Even the believers will be paying the tithe and offering through machines only. फिर विश्वासी लोग अपने दशमांश और भेंट को मशीन के द्वारा ही देंगे। We must keep a swiping machine in every faithum. फिर हर एक विश्वास घर में स्वाइपिंग मशीन रखना होगा। Believers will come, swipe the money, swipe the card. विश्वासी लोग आकर अपना कार्ड उसमें They दिखाकर will come with a receipt in the cell phone. वे से अपने सेल फोन का रिसिप्ट लेकर आएंगे। पास्टर जी मेरा टाइट 10,000 है, आपका बैंक में डाल दिया, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. पास्टर जी आपका जो दशमांश 10,000 रुपए आपके बैंक में डाल दिए मेरे लिए प्रार्थना करना। They will come with the receipt, not with the money. वे पैसे के साथ नहीं आएंगे रसीद के साथ आएंगे। One way it is very good एक तरह से तो ये अच्छा है because there shall be transparency. क्योंकि सब कुछ पारदर्शी होगा। The leaders of the church can know who is having how much money. कलीसिया के अगुए भी जान सकेंगे किसके पास कितना पैसा है। Nobody can hide anything. कोई भी कुछ छिपा नहीं There will सकेगा। be transparency. पारदर्शी अनुभव होगा One way it will develop a very good oneness of mind among all the people. और एक तरह से सभी लोगों के अंदर एक मन और एकता उत्पन्न होगी। So soon such things are going to happen. बहुत जल्दी ऐसी बातें होने वाली हैं। So for the formation of one world economy, everything is getting ready. संसार में एक ही अर्थव्यवस्था के लिए सब कुछ तैयार हो रहा है। It may not take place so soon, शायद ये बहुत जल्दी तो लागू ना हो, but see how things are developing from India, a country
which was using 95% cash. लेकिन देखिए भारत जैसा देश जिसमें 95% वे लोग नकदी का इस्तेमाल करते थे, अभी कैसा हो रहा है। When God decides something, it will happen. जब परमेश्वर किसी बात का फैसला करता है तो वो हो जाएगा। It may happen immediately or later. वो तुरंत भी हो सकता है या देरी से भी हो सकता It will है, happen. लेकिन वो होगा। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है, That's why already all these things are recorded in the Bible. इसलिए ये सारी बातों को पहले से पवित्र शास्त्र में लिखा गया But है। whatever may they try, वो कितना भी प्रयास करने से भी they cannot do it effectively. वे लोग उससे प्रभाव रूप से नहीं कर पाएंगे। Only during the 1,000 years ruling of our Lord Jesus in this world, there will be really one world government, one world economy, and one world religion. केवल जब प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, तभी सारे संसार में एक ही सरकार होगी, एक ही धर्म और एक ही अर्थव्यवस्था होगा। We are all going to be rulers in that beautiful, peaceful government. उस सुंदर शांतिमय राज्य में हम सब अधिकारी होंगे। Wherever you want to go, you can go. जहाँ कहीं आप चाहे आप जा There सकेंगे, will be no sickness. वहाँ पर कोई बीमारी नहीं People होगी। will be living 600 years, 700 years. People will not die so soon. 600-700 वर्षों तक भी लोग जीवित रहेंगे, जल्दी नहीं मरेंगे। It will be a glorious ruling. एक महिमा में राज्य होगा। God has given such a glorious ruling. For that shall we shout hallelujah, 3 hallelujah with a maximum voice. परमेश्वर ने हमको ऐसे एक महिमा में राज्य दिया, उसके लिए पूरे ऊंचे आवाज के साथ हम 3 हालेलुया बोलेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, for one world government, everything is ready. सारे संसार में एक सरकार के लिए सब कुछ तैयार हो गया। One world economy, everything is ready. पूरे संसार की एक अर्थव्यवस्था के लिए भी सब तैयारी हो गई, But there is delay also. लेकिन विलंब भी हो रहा है, Because biochip is ready. जो कि बायोचिप तो तैयार है। 3 crore people, they are already using it. 3 करोड़ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, But many refuse to take also. लेकिन कई लोगों ने लेने से भी इनकार They किया है। say our privacy, we cannot keep our privacy, so we will not accept it. वे कहते हैं हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम उसमें अपनी निजता को संभाल नहीं पाएंगे। So one world economy also, everything is getting ready. पूरे संसार में एक अर्थव्यवस्था के लिए भी सब तैयारी हो But रही all है, will not accept so easily लेकिन सब लोग उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे because they have to pay the tax. क्योंकि उनको टैक्स अदा करना They होगा। cannot have black money. वे लोग काला धन नहीं रख सकते। Everything will be known to the government. सब बातें सरकार जान लेगी, Their income will be less. उनका वेतन कम होगा। So like that, though things are getting ready, there is a delay also. इसी कारण से कई बातें तैयार होने पर भी विलंब हो रहा है। But when an emergency comes, लेकिन जब एक आपातकालीन स्थिति आएगी, government will say it is a must. तब सरकार कहेगी नहीं, ये अत्यावश्यक होगा। America will say अमेरिका कहेगा all the citizens of America must take the biochip, otherwise you leave the country. अमेरिका के सभी नागरिकों को बायोचिप लेना होगा, नहीं तो देश छोड़ना होगा। Because terrorism is increasing every day. क्योंकि प्रतिदिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। Certain terrorist group, they do lot of nonsense in the whole world. आतंकवादियों के कई झुंड सारे संसार में बहुत ही गड़बड़ी पैदा करते हैं। It's becoming uncontrollable. अभी वो अनियंत्रित होता जा रहा So है। every country will be forced to make biochip as a way of identification in the days to come. इसलिए आने वाले दिनों में प्रत्येक देश में उनकी पहचान के लिए बायोचिप बनाना अनिवार्य हो But जाएगा। all will not accept it immediately. सभी लोग तो उसे तुरंत स्वीकार नहीं But करेंगे, suppose there comes a war, लेकिन मान लीजिए यदि कोई युद्ध होता है, any emergency, कोई आपातकालीन स्थिति घोषित होती है, government can order all must take biochip, then we must take only. तो सरकार इस प्रकार से घोषणा कर सकती है कि सभी को ये लेना अनिवार्य होगा। So for that emergency also, some wars are almost going to happen very soon. उस आपातकालीन स्थिति के लिए भी कई तैयारी हो रही है, बहुत जल्दी वो बात होने वाली There है। will be a third world war एक तीसरा विश्व युद्ध होगा just before the coming of the Lord. प्रभु के आगमन के ठीक पहले। For that also everything is getting ready now. उसके लिए भी अभी सब कुछ तैयार हो The रहा है। third world war will start mainly based upon Israel. इसराइल के ऊपर आधारित तीसरा विश्व युद्ध होगा। So in all the world wars, सभी विश्व युद्धों में nobody was benefited, किसी को लाभ नहीं हुआ, but the Israelites only were benefited. केवल इसराइल को लाभ पहुंचा, Because they crucified Jesus on the cross. क्योंकि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। By the year AD 72, Jews were scattered throughout the world. और ईस्वी सन 72 में सारे यहूदी संसार भर में तितर बितर हो गए थे। Because when Pilate said, I am not responsible for the blood of Jesus, क्योंकि जब पिलातुस ने कहा कि मैं यीशु के लहू के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, he is righteous. वो धर्मी था। Then what the people said? तब लोगों ने क्या कहा, Don't worry. चिंता मत करो, Let his blood come on upon us and upon our children. उसका लहू हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। The blood of Jesus came upon them. यीशु का लहू उनके ऊपर They आया। were scattered throughout the world by AD 72.
और ईस्वी सन 72 में वे सभी संसार भर में तितर बितर हो गए थे। Wherever they went through a shameful path. जहाँ कहीं भी गए वे शर्मनाक अवस्था में से गुजरे। So after this, by the time of Second World War, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर because they were ill-treated in every country, सभी देशों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, they wanted to come back to their own country. इसलिए वे अपने देश में लौट आना चाहते थे। From AD 72 ईस्वी सन 72 से लेके till 1947, 1947 तक for 1875 years, 1875 वर्षों में there was no country by name Israel. इसराइल नाम का कोई देश नहीं था। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर There was सकते no हैं? country by name Israel for 1875 years. 1875 वर्षों तक इसराइल नाम का देश नहीं था। But after the Second World War, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात they started coming back. वे लोग वापस लौटने लगे। And now within this 65 years, अब ये 65 वर्षों के अंतराल में they have developed so much. इतना अधिक वे विकसित हो गए। They are one of the most powerful country in the world. अभी वो संसार के सबसे सामर्थी राज्यों में एक हो गए हैं। Now the Third World War will be starting based upon Israel. अभी इसराइल के ऊपर ही आधारित होकर तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होगा। For that also now everything is getting ready. उसके लिए भी अभी सब कुछ तैयार हो रहा When the है। Jews came back from different countries to get settled in Israel, इसराइल में वापस आकर स्थापित होने के लिए यहूदी लोग जब संसार भर से वापस इसराइल में आए, the countries around them they did not like it. वो चारों ओर के देशों को ये बात पसंद नहीं आई। Egypt, Jordan, there are nine countries around it. यर्दन और उसके साथ ही साथ 9 देश उसके आसपास थे। They said we will not allow. उन्होंने कहा हम अनुमति नहीं We देंगे, will destroy Israel. हम इसराइल को नाश कर We देंगे, will remove them from the world map. हम उनको संसार के मानचित्र से हटा देंगे, Because they were all powerful countries क्योंकि वे सब शक्तिशाली राज्य थे। in their army and in the population and with all the weapons, airplane, they were 10 times powerful than Israel. और अपनी शक्ति सामर्थ में, अपनी जनसंख्या में, उनके विमानों में, इस प्रकार सारी सेना के रूप में देखने से इसराइल से वे 10 गुना सामर्थी So थे। on the day in which they announced their independence, जिस दिन उन्होंने अपने स्वाधीनता की घोषणा की, all these countries came against them. सारे देश इनके विरोध में आ गए। And there were many countries, so throughout the border of Israel, all the armies came. इसराइल के देश की चारों सीमाओं में चारों तरफ कई सेना इकट्ठा हो गई। How we will fight? वो कैसे लड़ेंगे? If a Pakistan is coming in Delhi, it is easy to fight. यदि पाकिस्तान दिल्ली में आकर लड़ता है तो आसान हो जाएगा। If they are coming everywhere, Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Gujarat, all the borders, Calcutta, Nagaland, everywhere, if they come at a time, how will manage? यदि वो एक ही समय में भारत की सभी सीमाओं में केरला में, तमिलनाडु में, इस तरह से कलकत्ता में, ऐसे नागालैंड में, सभी देशों में एक साथ सभी राज्यों में आ जाते हैं तो कैसे उनसे लड़ सकते हैं? Just because God was with them, they were able to win. लेकिन क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, इस कारण से वे जय पा When सके। God makes a sketch, nobody can stop it. जब परमेश्वर एक जय देता है तो कोई उनको रोक नहीं When सकता। God wants to bless you, nobody can stop it. जब प्रभु आपको आशीष देना चाहता है तो कोई रोक नहीं When God सकता। wants to promote you, nobody can stop it. जब प्रभु आपकी पदोन्नति करना चाहता है कोई रोक नहीं When God सकेगा। wants to use you, nobody can stop it. जब प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है कोई रोक नहीं सकेगा। But we should be true Israel. परंतु हम सच्चे इसराइल होकर बदलना Abraham चाहिए। obeyed God in everything. उन्होंने सब बातों में परमेश्वर की आज्ञा मानी। Abraham. इब्राहिम ने सब बातों में प्रभु की आज्ञा मानी। Just because of the obedience of Abraham, till today God is preserving the children of Israel. इब्राहिम की आज्ञा मानने के कारण अभी तक परमेश्वर इसराइलियों को संभाल रहा है। Now what has happened अभी हुआ क्या? when Obama term was over, जब ओबामा का समय समाप्त हुआ, he was the president of United Nations. वो जो यूनाइटेड नेशंस का राष्ट्रपति था, Before he came out of the United Nations, वो उस यूनाइटेड नेशंस में से बाहर आने के पहले, till he was ruling, उसके राज्य करने के समय तक he did not do anything against Israel. उसने इसराइल के विरोध में तो कुछ नहीं किया, But in the heart, he was not with them. लेकिन उसका हृदय उनके साथ नहीं था। The last moment, what he did, अंतिम समय उसने क्या किया? in 15 January 2017, 2017 15 जनवरी को he gathered 70 countries in France. उसने फ्रांस में 70 देशों को एकत्रित किया। There is something called United Nations Security Council. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करके ऐसा एक संगठन है। United Nations were formed यूनाइटेड नेशंस तो बनाया गया था to solve the problems of countries in between and to avoid another world war. कई देशों के बीच की समस्याओं को सुलझाने के लिए और विश्व युद्ध से बचे रहने के लिए। There is an organization by name UNESCO.
यूनेस्को नाम का एक संगठन है, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. जो संयुक्त राष्ट्र का जो संस्कृति और विद्याभ्यास के लिए एक संगठन है। Their aim is to promote understanding among nations. उनका जो लक्ष्य है वो लोगों के बीच में, कई देशों के बीच में समझ को पैदा करना है। There are 10 permanent members. उसमें 10 Sorry, स्थायी, five permanent members उसमें 5 स्थायी सदस्य and हैं 10 temporary members. और 10 तात्कालिक सदस्य If हैं। all the 15 countries vote, majority of them vote, then that resolution will be passed. और यदि वो 15 देशों में से अधिकतम लोग उनके उसको वोट देंगे तो उनका रेजोल्यूशन वो पास हो जाता है। On 15 January 2017, 15 जनवरी 2017 में 14 countries passed a resolution which is against Israel. 14 देशों ने मिलकर इसराइल के विरोध में ऐसा एक नियम का पारित किया। Obama cunningly he did not take part in the voting. ओबामा ने चतुराई से इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। What they decided? उन्होंने क्या निर्णय लिया? Half of Jerusalem, यरूशलेम का आधा हिस्सा Mount Moriah, और मोरिया पहाड़ Temple Mount, और मंदिर का पहाड़ Solomon's Temple. जहाँ सुलेमान का मंदिर है, All these things have to be given to Palestine. ये सभी स्थान जो है फलस्तीन को देना चाहिए। If you understand the background only, you can understand everything उसकी nicely. पृष्ठभूमि को जानने से आप उसे समझ पाएंगे। Our God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। You obey Him, यदि हम उसकी आज्ञा मानेंगे, when He wants to give something, He will give. Nobody can stop it. जब वो कुछ देना चाहेगा तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। Though the Jews were scattered throughout the world because they crucified Jesus, यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण यद्यपि यहूदी लोग सारे संसार में तितर बितर हो गए थे, God told them if they repent and cry, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यदि वे लोग मन फिराएंगे, though they रोएंगे, may be scattered throughout the world to the uttermost part of the world, I will bring them back to their country. चाहे वे सारे संसार में तितर बितर भी क्यों न हो जाए, लेकिन मैं उन्हें पृथ्वी की छोर से लेकर आऊंगा। If they repent, और उन्होंने ऐसा पश्चाताप किया। if they repent, यदि वे मन फिराए, they cried, they repented, वे रोए, उन्होंने मन फिराया, because lakhs of Jews were killed by Hitler, क्योंकि हिटलर के द्वारा लाखों यहूदी मार दिए गए mercilessly killed. और दया रहित रूप से मारे गए। Everywhere they were going through shameful path. सभी जगह में वे एक शर्मनाक अवस्था में से गुजर रहे थे। Many of them were rich also, कई लोग धनी भी थे, but many of them were going through shameful path. लेकिन कई लोग फिर भी शर्मनाक Even परिस्थितियों rich से people गुजर, and educated people also were killed. कई धनी और पढ़े लिखे लोग भी मार डाले So गए। they wanted to come back, they started crying. इसलिए वे रोने लगे, वे वापस आना चाहते So थे। God wonderfully opened a way. परमेश्वर ने अद्भुत रूप से रास्ता The खोला। Second World War, दूसरे विश्व युद्ध में England was fighting against Germany, इंग्लैंड जर्मनी के विरोध में लड़ रहा था and they had a shortage of chemical by name acetone. एसीटोन नाम के रसायन की उनको कमी हुई। They used to buy acetone from Germany earlier. वे पहले जर्मनी से एसीटोन खरीदते थे। Now Germany is fighting against them, they cannot get. अभी जर्मनी उनके विरोध में लड़ता है तो वो उसे नहीं मिलेगा। If they do not get this acetone, यदि उनको ये एसीटोन नहीं मिलेगा, they cannot make enough bomb, they will be defeated in the war. फिर वो लोग अधिक बम नहीं बना सकेंगे, वे लड़ाई में पराजित हो जाएंगे। They were worried. वे चिंतित हो गए। At that time, one Jewish scientist came, उस समय एक यहूदी वैज्ञानिक आया told them, और उनसे कहा, okay, give me different kind of dolls. बोला कि तुम मुझे अलग अलग तरह की गुड़िया दे दो, गुड़िया नहीं, डाल 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 दे दो। डाल क्या बोलना है इंग्लिश? डॉल इज डॉल. ओके, सबको समझने हो गया. ओके, गिव मी डॉल्स अलग अलग तरह की दालें दे दो, एंड आई विल मेक एसीटोन आउट ऑफ इट. मैं उसमें से एसीटोन बनाऊंगा। दे गेव, उन्होंने दिया, he made necessary acetone. आवश्यक रूप से उसने एसीटोन बना के They दिया could make enough bombs. और वे अधिक आवश्यक रूप से बम And को the बना Second सके World War, Britain took victory. और दूसरे विश्व युद्ध में वे जय पा सके। So they became so happy about this scientist इस वैज्ञानिक के कारण वे बहुत ही खुश हो गए and told him, what do you want? और पूछा तुम्हें क्या चाहिए? Whatever you ask, we'll give. जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे The दूंगा। scientist said his name is Weizmann, Chaim Weizmann. उस वैज्ञानिक का नाम है चेन वेजमैन। And he said, I don't want anything. उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, Give Palestine for the children of Israel. इसराइली लोगों के लिए फलस्तीन दे दो And allow them to come back and settle in Palestine. और उन्हें अनुमति दो कि वे फलस्तीन में आकर फिर से बस जाएं। England said, okay. इंग्लैंड ने कहा ठीक है। At that time, England was ruling the whole world. उस समय इंग्लैंड सारे संसार में राज्य करता था। They used to say that the sun never set in England. ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड में कभी भी सूर्य अस्त नहीं They होता। had such a great ruling area. उनको इतना अधिक राज्य आधिपत्य था। They said, okay. उन्होंने कहा ठीक है। So they announced that all the Jews who want to come back, they can come back. उन्होंने ऐसे घोषणा की जो यहूदी वापस आना चाहते वे आ सकते हैं। When they came back,
जब वे वापस आए, the Palestine was so much big. फलस्तीन तब इतना बड़ा देश It था, all belonged to Palestine. ये पूरा फलस्तीन के लिए था। Though it was not fully occupied, यद्यपि पूर्ण रूप से उन्होंने उस अपने अधिकार में नहीं लिया था, Palestinians were staying. फलस्तीन लोग वहां रहते In थे। 1947, 1947 में they made a plan by name partition plan. उन्होंने ऐसी एक योजना बनाई, विभाजन की योजना। That means half was given to Israelites and half was given to Palestine. अर्थात उसमें से आधा इसराइल को दिया गया, आधा फलस्तीन को दिया गया। All the white portion belongs to Israel, white portion. जो सफेद हिस्सा है वो सब इसराइल Or का the है, green portion was given to Palestine. जो हरे रंग का हिस्सा है वो सब फलस्तीन को दिया गया। But soon लेकिन जल्द ही they occupied so much area. उन्होंने इतना अधिक इलाके को कब्जा कर लिया। They captured 5,000 square kilometer. 5000 स्क्वायर किलोमीटर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। How it happened? ये बात हुई है, It's a miracle. How it happened? ये कैसे हुआ? It's the work of God. ये परमेश्वर का काम है। So I already told you that on the day of independence itself, the nearby countries they declared war against Israel. मैंने आपको बताया कि उनकी स्वाधीनता के दिन में ही उनके आसपास के देशों ने इसराइल के विरोध में युद्ध घोषित किया था। They thought that we can completely crush Jews. उन्होंने सोचा था कि हम यहूदियों को पूरी तरह से कुचल देंगे। The Egyptian president and other countries they told the Palestinians go are staying inside. मिस्र के राष्ट्रपति और बाकी देशों ने कहा, जो फलिस्ती लोग जो अंदर रहते थे उनसे इस प्रकार कहा, Just come out for 1 week. केवल एक सप्ताह के लिए आप बाहर आ जाएं। Within 1 week we will kill all the Jews. एक सप्ताह के अंदर हम सारे यहूदियों को मार We डालेंगे, will wipe away from this country. हम उन्हें इस देश से पूरी तरह से निकाल After डालेंगे the war there will be no country by name Israel. और युद्ध के पश्चात इसराइल नाम का कोई देश नहीं रहेगा। After the war युद्ध के पश्चात you can go back. तुम वापस जा You सकते can हो, occupy their houses also. तुम जाकर उनके घरों को भी कब्जा कर सकते हो। So they thought it's a nice idea. उन्होंने सोचा ये एक अच्छा विचार है। Israel told them, please don't go. इसराइल ने कहा तुम मत जाना, We are living together peacefully. हम तो आपस में शांति के साथ अच्छे से रहते हैं, Don't go. तुम नहीं जाना। But they listened to the surrounding countries, लेकिन पास पड़ोस के देशों की बातों को उन्होंने सुना, went back. वे वहां चले गए। So God gave them grace to fight the battle. परमेश्वर ने उनको लड़ाई लड़ने के लिए अनुग्रह दिया। They fought with all these countries in every side. सभी दिशाओं के सारे देशों से इन्होंने युद्ध किया From every country they captured some land. और हर एक देश में से उन्होंने थोड़ा थोड़ा देश को कब्जे And in इलाका कब्जा कर लिया। Palestine they captured 5,000 square kilometer. फलस्तीन ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर को कब्जे में ले लिया। From here they occupied all these places. यहाँ से सारे इलाके को कब्जे में ले लिया। Then after the war is over, युद्ध की समाप्ति पर Palestinians wanted to come back. फलस्तीनी लोग वापस आना चाहते थे। They said, no, you cannot come. उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी आ नहीं We सकते। fought and got this land, we will not give you back. हमने लड़कर ये देश को अपनाया है, अभी तो हम आपको वापस Other नहीं देंगे। countries also were not willing to accept them. दूसरे देश के लोग भी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। So they were in no man's land. अभी वो किसी भी व्यक्ति की भूमि में नहीं थे। There is a main reason for conflict in the Palestine now. फलस्तीन में अभी दिखाई देने वाले संघर्ष का एक मुख्य कारण यही है। Palestinian leaders like Yasser Arafat, they are all fighting to get Israel. फलस्तीन के जो नेता यासिर अराफात और बाकी सब लोग इसराइल को कब्जे में लेने के लिए वे लोग लड़ते Now रहते the हैं। resolution has been passed in the UNSC, United Nations Security Council. अभी जो यूनाइटेड नेशन सुरक्षा संगठन है उसमें इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन पास किया है That half of Israel should be given to Palestinians. कि इसराइल का आधा हिस्सा फलस्तीन को दिया जाए। According to this plan. इस योजना के अनुसार In that case, Bethlehem should go to Palestinians. अगर ऐसा है तो बेतलेहम भी फलस्तीन को जाएगा, Hebron should go to Palestine. हेब्रोन भी फलस्तीन को जाना चाहिए। Mount Temple, Solomon's Temple, everything should go to them. सुलेमान का मंदिर, वो मंदिर की पहाड़ी, वो सब उनके जाना चाहिए। According to history in the Bible, और बाइबल के इतिहास के अनुसार all these things belong to the Israelites. ये सब इसराइल के लिए है। Rachel was buried as Hebron. राहेल को हेब्रोन में दफनाया गया। And Jesus was born at Bethlehem. यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ। David was born in Bethlehem. दाऊद का जन्म बेतलेहम में हुआ। And Israelite, the tribe of Judah, was mainly staying in Bethlehem. यहूदा का गोत्र मुख्य रूप से बेतलेहम में रहता The था। western wall, everything belongs to the Israelites. और जो पश्चिमी दीवार है वो सब इसराइल की है। But the UNSC, United Nations Security Council, doesn't accept Bible as a historical document. लेकिन ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संगठन है वो लोग पवित्र शास्त्र को एक इतिहास की पुस्तक के रूप में नहीं मानते हैं। So they passed a resolution. ऐसा उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। But Israel said, we don't care.
लेकिन इसराइल ने कहा हम चिंता नहीं करते, We will fight against you. Let any country come, any amount of countries come, we will fight. चाहे कितने भी देश हमारे विरोध में आएंगे हम लड़ेंगे। By the time Trump became the prime minister, और उस समय तक ट्रम्प राष्ट्रपति बन गया, he also did not cancel this resolution. उसने भी इस रेजोल्यूशन को रद्द नहीं किया। There are 5 powerful countries. 5 शक्तिशाली If राज्य they हैं, want to cancel, they can cancel. यदि वे चाहे तो उसको रद्द कर सकते हैं, But Trump has not done it. लेकिन ट्रम्प ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। Suppose any problem in between Israel and the Palestine and it become very serious, अगर इसराइल और फलस्तीन के बीच में समस्या अधिक गंभीर हो जाती है again the United Nations Security Council will give pressure to the world to implement it. तो दोबारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संगठन जो है वो संसार के ऊपर दबाव डालेगा कि वो इसे लागू करे, Because 14 members of the 15-member group have signed it already. क्योंकि 15 में से 14 लोगों के झुंड ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। Then there will be a trouble. तब संकट पैदा होगा। If any war comes, यदि कोई युद्ध आता है, America and the English-speaking countries will join Israel. अमेरिका और अंग्रेजी बोलने वाले देश जो है इसराइल के साथ मिल जाएंगे, Russia and other countries will join the other group. और रूस और दूसरे देश दूसरे झुंड में मिल जाएंगे, There will be a third world war. और तीसरा विश्व युद्ध आरंभ Already होगा। after this resolution is signed, और ये परिपत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात Russia, without any serious reason, he has taken all the warships and kept it on the sea ready. रूस ने बिना किसी का गंभीर कारण से अभी से अपने सारे युद्ध के जहाजों को समुद्र में तैनात किया Now है। both the presidents of Russia and America, they are expecting a world war very soon. अभी बहुत जल्दी रूस और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वे लोग विश्व युद्ध के लिए तैयारी कर रहे Now हैं। what they are doing, वे लोग अभी क्या करते हैं, in the days to come, we can watch in the news. आने वाले दिनों में आप समाचार पत्र में देख सकेंगे। Whenever the president of America and the president of Russia go out of the country, जब कभी अमेरिका और रूस के जो राष्ट्रपति है वे देश से दूसरे देश में जाते हैं, when they get on from the aeroplane, जब वे विमानतल से उतरते हैं, you can see some security guards carrying very heavy bags like this. उनके सुरक्षा कर्मियों को इस प्रकार से कई भारी बैग लेकर आते हुए आप देख सकेंगे। This is a security guard of America. ये अमेरिका का सुरक्षा कर्मी है This is a security guard of Russia. और ये रूस का सुरक्षा कर्मी है। They carry very big luggage. ये इस प्रकार से बहुत भारी भरकम सामान लेकर What is आते हैं। inside? उसके अंदर क्या है? They call it nuclear football. इसको वे आणविक फुटबॉल कहते हैं। Like football, they can take it anywhere. फुटबॉल के समान वे उससे कहीं भी ले जा सकते Any हैं। emergency comes, यदि कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो American president can open it. अमेरिका का राष्ट्रपति उसको खोल सकता Even है, Russian president. रूस का राष्ट्रपति भी। It will hotline. Directly they can talk to the army officers. वे लोग जो हॉटलाइन के द्वारा सीधे सेना के अफसरों से बात कर सकेंगे They can discuss 2-3 minutes, और 2-3 मिनट के अंदर decide, निर्णय लेकर, and the president can press the button of atom bomb in the very same place, in the very same country where they are at the time. और जिस देश में वो वहां पर है उसी स्थान में रहकर वो उस एटम बम के उस बटन को दबा सकेगा। So anything serious, यदि कुछ भी गंभीर बात है तो they are ready to face it. वे लोग उसका सामना करने के लिए They तैयार are ready हैं। for a nuclear war. वे लोग आणविक युद्ध के लिए तैयार हैं। America also is ready, Russia also is ready. अमेरिका भी तैयार है, रूस भी तैयार है। See, everything is getting ready for a third world war. देखिए तीसरे विश्व युद्ध के लिए सब कुछ तैयार हो रहा है। When that emergency comes, जब ऐसी एक आपातकालीन स्थिति आती है every country will say that you must take the biochip. तो सभी देश के लोग कहेंगे कि आपको बायोचिप लेना होगा। Otherwise, if American people do not refuse to take biochip, the government will say, then you cannot be the citizen of America. यदि अमेरिका के लोग कहेंगे हम बायोचिप नहीं लेंगे तो वे कहेंगे तुम अमेरिका के नागरिक नहीं रह सकते। Everything is ready. सब कुछ तैयार है। Then India is also ready. भारत भी तैयार है। They have already given order for 5,000 biochip, 5,000 crore biochip. 5,000 करोड़ बायोचिप के लिए भारत ने ऑर्डर किया है। There are 133 crores of people in India, भारत में 133 करोड़ लोग हैं, but it has given order for 500 crores. लेकिन 500 करोड़ के लिए उसने ऑर्डर दिया है। Many other countries, they have already given order. और भी कई देशों ने पहले से ऑर्डर दे दिया है। So from this we understand that इससे हम ये समझते हैं everything is going to end very soon. सब बातों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। Now our main duty is that इसलिए अभी हमारा जो मुख्य कर्तव्य है we should have a close walk with God. हमें प्रभु के साथ एक निकट संबंध होना We चाहिए। may be Christians, हम मसीह हो सकते we हैं, may be born again Christians, हम शायद नया जन्म पाए हुए we मसीह can say I होंगे, have received the Holy Spirit. हम कह सकते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, That is not the qualification. लेकिन वो उसके लिए योग्यता नहीं These are है। only the basic qualification. वो तो केवल उसकी आधारभूत आवश्यकता है, But we must have a close walk with God. That is important. लेकिन प्रभु
के साथ एक निकट संबंध होना मुख्य है। God created man परमेश्वर ने मनुष्य की and सृष्टि kept की, in the Garden of Eden. उसको अदन की He वाटिका में walked रखा, with him every day. प्रतिदिन उसके साथ वे चलता But था, man disobeyed God. लेकिन मनुष्य ने उसकी आज्ञा का He did उल्लंघन not किया, accept his mistake. अपनी गलती को उसने नहीं माना, So God was forced to sending out of the Garden of Eden. इसलिए उसको अदन की वाटिका से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मजबूर हुआ। It's a sad thing. कितनी दुख की बात है, How much God would have grieved. परमेश्वर कितना दुखी हुआ होगा। But even then God did not change his plan. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी योजना नहीं He बदली। sent his only begotten son Jesus to this world to die on the cross for the sin of the whole mankind. वो सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। I already told you that in 3 gardens God wanted to have a close relationship with man. मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य के साथ एक निकट संबंध बनाने के लिए परमेश्वर 3 बगीचों का इस्तेमाल किया था। One was Garden of Eden. पहला अदन की वाटिका थी। When Jesus was in this world, जब यीशु इस संसार में था, he wanted to have a close fellowship with his disciples. वो अपने चेलों के साथ एक निकट संबंध रखना चाहता In था। Matthew 26:36, we read about the name of that garden. मत्ती का सुसमाचार 26वें अध्याय के 36 वचन में हम उस वाटिका के नाम को पढ़ते हैं, Garden of Gethsemane. गत्समनी की वाटिका। We can state Mount Olives also. हम उसे जलपाई का पर्वत भी कह सकते हैं। Lord Jesus used to go to the Mount Olives every day and pray in the night. यीशु मसीह प्रतिदिन जैतून पहाड़ पर जाके प्रार्थना करते थे, Gethsemane is just at the bottom of Mount Olives. और गेत्सेमनी वो जैतून पहाड़ के नीचे ही है। So whether he went to Mount Olives and Gethsemane, it's almost nearby. वो Same only. जैतून के पहाड़ पर गया नहीं तो गेत्सेमनी में गया, वो एक ही बात है। But when we see the incidents happening in Matthew 26, मत्ती 26वें अध्याय की घटनाओं को जब हम देखते हैं, oh, we have to learn many things. हमें कई बातों को सीखना होगा। He came there. वो वहां पर आए, He told 8 of his disciples, उसने अपने 8 चेलों से कहा, just sit here. यहीं बैठे रहो, Sit here. तुम यहीं रहो। Then he took 3 disciples और वो 3 चेलों को उसने लिया and went inside और अंदर गया, and started sharing his burden with them. अपने बोझों को उनसे बांटने लगा। He said, my soul is exceeding sorrowful. उसने कहा कि मेरा प्राण बहुत दुखी है, Please watch and pray with me. मेरे साथ जागकर प्रार्थना करते रहो। In which group you are? आप किस झुंड में हैं? If God is going to be crucified tomorrow, यदि प्रभु कल क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला है तो will you call you to go and pray for him, or he will just say, sit there? क्या वो आपको देखकर ऐसे कहेगा ठीक है वहीं बैठे रहो, नहीं तो आपसे कहेगा आकर मेरे लिए प्रार्थना करो। Some of us, we may be the children of God. हम में से कुछ लोग परमेश्वर की संतान तो होंगे, We may pray only for 2 minutes, आप केवल 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते होंगे 5 minutes, या 5 मिनट के लिए, before going to college or to the office. या ऑफिस या कॉलेज में जाने के पहले, And before taking food, we all will pray, sure. और खाना खाने के पहले तो निश्चय सभी प्रार्थना करते होंगे। Some of us may not pray more than that. कुछ लोग उससे अधिक नहीं करते होंगे, Only 15 minutes. केवल 15 मिनट। One day I told one brother, एक दिन मैंने एक भाई से कहा, whether you are retired, you are having lot of time. भाई आप तो अभी सेवा निवृत्त हो गए, आपको बहुत समय है, You can pray for us, pray for the believers, you can pray hours together. आप हमारे लिए और विश्वासियों के लिए कई घंटों तक प्रार्थना कर सकते हैं। Then I asked him, how many minutes you pray every day? तब मैंने उनसे पूछा आप कितना मिनट प्रतिदिन प्रार्थना He said, करते हैं? Pastor, 5 minutes. उसने कहा पास्टर जी 5 मिनट करता I हूँ। told him, why not more? मैंने कहा अधिक क्यों नहीं? He said, 5 मिनट में सब प्रेयर पॉइंट खत्म हो जाता है पास्टर जी. उसने कहा 5 मिनट में सारे प्रेयर के प्रार्थना के विषय समाप्त हो जाते हैं। I am praying for everybody. 5 minutes, everything is over. I cannot pray. सभी बातों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, 5 मिनट से अधिक तक विषय नहीं रहता, मैं इसलिए नहीं कर If you पाता। are praying for 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, God will tell, just sit here. यदि 2 मिनट 5 मिनट के लिए केवल आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कहेगा केवल यहीं बैठे He will रहो। never think to share his burden with us. वो कभी भी अपने बोझ को हमारे साथ बांटने के लिए सोचेगा भी नहीं। He all were called, सभी को बुलाया गया था, but only 3 were chosen. लेकिन केवल 3 को चुना गया। We should be in the chosen group. हम उस चुने हुए झुंड में पाए जाना Those चाहिए। who want to be in the chosen group, जो लोग उस चुने हुए झुंड में दिखाई देना you चाहते should हैं, bear the burden of Jesus. आप यीशु के बोझों को उठाना I चाहिए। can preach. मैं प्रचार कर सकता That हूँ, doesn't mean that I am in the chosen group. इसका अर्थ ये नहीं कि मैं चुने हुए झुंड में I am हूँ, chosen to preach. मैं प्रचार करने के लिए चुना That गया doesn't हूँ। mean that I am sharing the burden of Jesus. उसका अर्थ ये नहीं कि मैं यीशु के बोझों को बांट रहा हूँ। In prayer, we should share the burden of Jesus. प्रार्थना में हम यीशु के बोझों को बांटना चाहिए, Then only we are in the chosen group. तभी हम उस चुने हुए झुंड में दिखाई So देंगे। Jesus told them to pray and went and prayed for 1 hour. यीशु मसीह ने उनके लिए उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा और जाकर 1 घंटे तक प्रार्थना की। In Luke 22:42 to 44, we read that. लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 42 से 44 वचन में हम पढ़ते हैं, He felt so weak.
उसको इतना अधिक वो निर्बल महसूस हुआ। He told the Father, Father, if it is thy will, if it is possible, let this cup pass from me. उसने पिता से कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। Nevertheless, not as I will, but as you will. तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। He had no strength to face the situation. उस परिस्थिति का सामना करने के लिए उसमें सामर्थ नहीं थी। But then we read that लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, one angel came from heaven स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया and strengthened Jesus. जो उसे सामर्थ देता था। So when we say, I am unable to do anything, जब हम कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, first of all, we should try. सबसे पहले हमें प्रयास करना We है, should do the will of God. हमें प्रभु की इच्छा करना If है। you really try, यदि हम सचमुच प्रयास God करेंगे, will send His angels to help us, whether it is a prayer or anything. हम चाहे प्रार्थना करें या कुछ भी क्यों ना करें, अब प्रभु अपने स्वर्गदूतों को हमारी सहायता के लिए After being भेजेगा। strengthened, he prayed for 1 hour, और उसको सामर्थ देने के पश्चात उसने 1 घंटा प्रार्थना किया prayed very earnestly, और लौ लगा की प्रार्थना की, in great agony, वेदना के साथ प्रार्थना की, and his blood started coming out in the form of blood. और उसका जो पसीना है लहू की बूंदों की नई भूमि पर गिरने लगा। Then he rose up from the prayer. After 1 hour, he came back. 1 घंटे के पश्चात वो प्रार्थना से उठा, He came to Peter, James, and John. पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास आया They were happily sleeping. और वे लोग आनंद से सो रहे थे। He said, "Can you not pray at least for 1 hour? उसने पूछा, क्या तुम 1 घड़ी भी प्रार्थना न कर सके 1 hour with me?" मेरे साथ 1 घंटा? See their condition. उनकी अवस्था को देखिए, There is blood in the face of Jesus. यीशु के चेहरे में से लहू निकल रहा था, There is blood in the dress of Jesus. यीशु के वस्त्रों में से लहू बह रहा था, But they were so sleepy they could not even notice the blood on the face of Jesus. लेकिन वे इतना अधिक नींद की अवस्था में थे कि यीशु के चेहरे के लहू को भी वो देख नहीं सके। Jesus was so much grieved. यीशु इतना अधिक दुखी था। He said, "Can you not pray at least for 1 hour with me? उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सकते? Can you not share my burden?" क्या तुम मेरे बोझों को नहीं बांट सकते? Then Jesus said, तब यीशु ने कहा, "Okay, now you watch and pray, ठीक है, अभी तुम बैठ के प्रार्थना करो so that you may not enter into temptation." कि तुम परीक्षा में न पड़ो। Now Jesus understood they cannot share his burden. अभी यीशु तो समझ गया कि वे उसके बोझों को नहीं उठा He told सकते। them, "At least you pray for you, man, उसने कहा कि कम से कम तुम अपने लिए तो so प्रार्थना that करो you may stand at the time of temptation." ताकि तुम परीक्षा के समय खड़े रह सको। But they did not do pray at that time also. लेकिन उस समय भी उन्होंने प्रार्थना नहीं की। Jesus told, "The spirit is willing, but the flesh is weak. Please pray." यीशु ने कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, तुम प्रार्थना करो। He went and prayed for the second time. उसने दूसरी बार भी जाके प्रार्थना किया Again 1 hour. और 1 घंटा। Bible scholars say that on that night, 1 hour, 1 hour, 1 hour, 3 hours our Lord Jesus prayed. और पवित्र शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि उस प्रकार से 1-1 घंटा करके यीशु ने उस रात 3 घंटे प्रार्थना He किया। went and fell on his face and prayed. अपने मुंह के बल करके उसने प्रार्थना की। Have you ever prayed like that? क्या आपने कभी ऐसा प्रार्थना किया? All those who can say that when I came across great trouble, when I could not live overcoming life, I fell on my face and prayed. कितने लोग ऐसा कहते हैं, जब मैं बड़े संकट में पड़ गया, जब मुझे एक जीवन नहीं मिला, तब मैंने मुंह के बल करके प्रार्थना की। Put up your hands. हाथ ऊपर करें। I think I am the only one. There's 2 people are there. 2 लोगों ने हाथ उठाया है। Okay, I think you do not have more problems. मैं सोचता हूँ आपके पास अधिक समस्या नहीं थी, Otherwise, you do not take holiness very seriously. नहीं तो आप पवित्रता को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। But when I have come across problem, many times I have fallen at the feet of Jesus, face on the face. और जब मैं ऐसे समस्याओं का सामना किया, कई बार मैंने अपने मुंह के बल यीशु के चरणों पे मैं गिर पड़ा। There's no time to explain everything. सब समझाने के लिए समय नहीं। When I thought that I may not may be able to preserve my holiness, जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपनी पवित्रता को संभाल ना when पाऊंगा, the temptation was so much around me, जब मेरे चारों ओर परीक्षा इतना अधिक थी, many times I used to go in the night in the meeting hall and fall on the floor and cry, "Lord, do not allow me to do any mistake." कई बार मैं ऐसे मीटिंग हॉल में जाकर औंधे मुंह गिरकर ऐसे रोता था, हे प्रभु, कभी मुझे गलती करने के लिए मत छोड़ना। I came to live a holy life. मैं एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आया I came हूँ, to serve you. मैं तेरी सेवा करने I के लिए want आया to हूँ, go to Zion. मैं सियोन जाना चाहता हूँ, Please do not allow me to fall into sin. मुझे कभी पाप में गिरने के लिए मत छोड़ना। And God, as a faithful God, He preserved me from falling. और विश्वास योग्य परमेश्वर ने मुझे गिरने से बचाया है। Victorious life like Jesus will not come in easy way. यीशु मसीह के समान एक जयवंत जीवन आसान रूप से नहीं मिलेगा। When we cannot live a overcoming life, we should not be discouraged. जब हम जयवंत जीवन बिता नहीं पाते तो हमें निराश नहीं We होना should not चाहिए। think I cannot live.
हमें ऐसा नहीं सोचना कि मुझसे नहीं All हो can live सकता। like Jesus by the grace of God. प्रभु के अनुग्रह से सभी यीशु के समान जीवन But बिता we have to सकते try हैं, our level best. लेकिन हमें अपना भरसक If प्रयास you करना है। cannot overcome any weakness, यदि हम किसी कमजोरी पर जय प्राप्त नहीं कर पाते please try this. तो इस बात का प्रयोग करें। Fall on the face in the feet of Jesus and say, Lord, I am unable to control. Please have me. Have mercy upon me. यीशु के चरणों में औंधे मुंह गिर कर कहिए, हे प्रभु, मैं अपने आप को सहायता नहीं कर पाता, तू मुझे नियंत्रण कर। God will give us grace. तब प्रभु हमें अनुग्रह देगा। Overcoming life doesn't come in an easy way. Many times we take it very easy. जयवंत जीवन इतना आसानी से नहीं मिलेगा, कई बार हम उसे आसानी से लेते हैं। To live like our Lord Jesus, we have to spend lot of time in the presence of God. प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन बिताने के लिए प्रभु के सम्मुख में हमें अधिक समय बिताना Many होगा। times we have to fall at the feet of Jesus. कई बार हमें यीशु के चरणों में गिरना होगा। Once I was transferred to a new place. एक बार जब एक नए स्थान में मेरी बदली हुई, I do not know anybody in that place. उस स्थान में मैं किसी को नहीं जानता था। Building work was going on. वहाँ भवन निर्माण का काम हो रहा The था previous brother told that tomorrow the contractor will come. You should give him 10,000. और जो पहले भाई था उसने कहा कि कल वो ठेकेदार आएगा, आपको 10,000 देना है। And he gave me 300 rupees. This is my closing balance. उसने मेरे हाथ में 300 रुपए देकर कहा कि मेरे पास इतना ही पैसा बचा Evening था। the contractor came, और जब ठेकेदार आया, asked for money. पैसा मांगा। I said I have 300 rupees. मैंने कहा मेरे पास 300 रुपया ही He है। told me you must give. That brother was telling last week, last month, he's not giving. Tomorrow if you don't give, we will not come to work. उसने कहा कि आपको निश्चय देना ही होगा। वो भाई मुझसे 1 महीने से कह रहे थे कि पैसा दूंगा, उसने नहीं दिया। यदि आप मुझे कल पैसा नहीं देंगे तो मैं काम करने के लिए नहीं आऊंगा। In that place, if one contractor refused to come, and all the other contractors also will not come to work. उस स्थान में अगर एक ठेकेदार आने से इनकार कर देगा तो बाकी लोग भी नहीं आएंगे। I do not know anybody in that place. मैं तो उस स्थान में किसी को नहीं जानता था। I felt loneliness. मुझे अकेलापन महसूस हुआ। I felt I am alone. मुझे लगा मैं अकेला हूँ, No help. कोई सहायता In नहीं। the midnight, I fell on my face. आधी रात को मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। In that faithum, there was no cement also. It was a muddy floor. उस विश्वास घर में तो सीमेंट भी नहीं था, वो जमीन का मिट्टी का फर्श था। I fell on that floor and cried. मैंने उस फर्श पे गिर के मैंने प्रार्थना Lord, की, you should never be put me into shame. हे प्रभु कभी मुझे लज्जित मत कर। Till now, you have never put me into shame. आज तक तूने मुझे कभी लज्जित होने नहीं I दिया। cried and prayed. मैंने रो के प्रार्थना की। Within 5 minutes, I got the peace in my heart. 5 मिनट के अंदर मेरे हृदय में मुझे शांति मिली। Then I went to sleep. फिर मैं सोने चला गया। Early morning, 5 o'clock, there was a knock at the door. भोर को 5 बजे दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। Somebody came. कोई आया था। He told me, उन्होंने कहा, it was not from our church. वो हमारी कलीसिया के नहीं थे। He came and told me, उन्होंने आकर कहा, Pastor, I am going on a very long journey. पास्टर जी मैं लंबी यात्रा पर जा रहा It's a हूँ, very dangerous journey. बहुत खतरनाक यात्रा है, Please pray for my protection. मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। I sincerely prayed for him. मैंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की। Then he told me, Pastor, I understood that you are doing some building work. फिर उन्होंने कहा, पास्टर मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर भवन निर्माण का काम हो रहा है, Please take this small offering. आप ये छोटी सी भेंट रख लें। I thought it may be few hundreds. मैंने सोचा शायद कुछ 100 रुपए होंगे। But when I opened, all were 500 rupees note. जब मैंने खोल के देखा तो सब 500 के नोट थे। Exactly 10,000 rupees were. ठीक 10,000 रुपए उसमें था। So when we say, Lord, I am nothing, I cannot do anything, only you should help, God is ready to help us. जब हम प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं तू केवल तू ही मेरी सहायता कर, तब प्रभु हमारी मदद करेगा। Let it be earthly blessing or spiritual blessing. चाहे वो भौतिक आशीष हो या आत्मिक आशीष क्यों ना Let हो, it be overcoming life. चाहे वो जयवंत जीवन क्यों ना हो, Anything we are unable to do, हम जो कुछ भी नहीं कर पाते we हैं, can fall in the feet of Jesus. हम यीशु के चरणों में गिर सकते He is हैं। the wonder working God. He will do everything for us. वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करेगा। See, when he prayed, came back after praying for the second time, जब दूसरी बार प्रार्थना करके वो वापस लौटा, again they were sleeping. वे दोबारा सो रहे थे। Then they came to the category of those 8 disciples. फिर वो उन बाकी 8 चेलों के झुंड में वे भी दिखाई दिए। Third time, second time after prayer when Jesus came, दूसरी बार प्रार्थना करने के पश्चात जब यीशु आया, read verse 44. 44वां वचन, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। 44. मत्ती 26 का 44, 43, 44. 43, 44. 43 तब और 44। स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई Oh, दी। तब उसने आकर फिर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और वह उन्हें छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। okay, 26, 43 and 44. Third time, second time, after praying for the second time he came, दूसरी बार प्रार्थना करने के पश्चात जब वो तीसरी बार आया, they were again sleeping. वे दोबारा सो रहे थे।
Now he just left them. There is no use in telling them to pray. उनसे कहने के कोई फायदा नहीं ऐसा बोल के वो उन्हें छोड़ के चला गया। But he went to the third time and prayed, telling the same things. लेकिन तीसरी बार भी यही कहते हुए वो प्रार्थना करने के लिए चला गया। So we should not come to this place. इस अवस्था तक हमें नहीं आना है। All of us are called, हम सभी बुलाए गए हैं। and some of us have been called for a special purpose. हम में से कुछ लोग एक विशेष उद्देश्य के साथ बुलाए गए हैं। Chosen for a special purpose. इस विशेष उद्देश्य के साथ चुने गए हैं। But if we do not bear the burden of share the burden of Jesus, लेकिन यदि हम यीशु के बोझों को नहीं बांटते तो we will come to a place where God can say only, okay, just sit here. हम ऐसे एक स्थान में आ जाएंगे, प्रभु कहेगा ठीक है इधर ही बैठे रहो। You leave them and go, okay, no हम- use. ठीक है उसे छोड़ के चले जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं। Shall we examine our life? हम अपने जीवन को जांच के देखें। How many of us can say that yes, really Jesus can share his burden to me? हम में से कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि हाँ यीशु अपने बोझों को मेरे साथ बांट सकता है। If you want to be in the chosen group, यदि आप उस चुने हुए के झुंड में दिखाई देना चाहते हैं, I request all the believers, please pray at least for 1 hour every day. मैं सभी विश्वासियों से निवेदन करना चाहूंगा कम से कम दिन में 1 घंटा प्रार्थना To be करें, caught up with the coming of the Lord is not that easy. क्योंकि प्रभु के आगमन में उठा लिए जाना इतना आसान नहीं। And those who are in the want to be in the chosen group, और जो लोग चुने हुए के झुंड में दिखाई देना we चाहते must spend at least 1 hour in the presence of God to share the burden of Jesus. यीशु के बोझों को बांटने के लिए कम से कम 1 घंटा प्रभु के सम्मुख में बिताना The चाहिए। burden of Jesus is that whole world should be saved. यीशु मसीह का बोझ यही है कि सारा संसार उद्धार Church पाए, should be sanctified. कलीसिया पवित्र की जाए, Church should get ready for the coming of the Lord. कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। Those who want to be in the chosen group, जो लोग उस चुने हुए के झुंड में दिखाई देना चाहते हैं, make a decision today. आज आप एक फैसला करें। If you are not praying for the perishing souls every day, if you are not sharing the burden of Jesus, we are not at all in the chosen group. यदि आप ये नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रतिदिन प्रार्थना नहीं करते, यदि आप यीशु के बोझों को नहीं बांटते, तो आप उस चुने हुए झुंड में दिखाई नहीं देते हैं। God wants to talk to us. प्रभु हमसे बात करना चाहता See है। our children, we have many children. हमारे बहुत बच्चे हैं, We are cooking them nice food, हम उनके लिए अच्छा भोजन बना के देते हैं, give them dress, हम उनको वस्त्र देते हैं, send them to school. हम उनको स्कूल में भेजते We हैं। want them to get a good job. हम चाहते हैं कि उनको अच्छी नौकरी भी मिले, We want them to come up in their life. हम चाहते हैं वे अपने जीवन में आगे बढ़े, In short, they want to become like us, and we want them to become better than us also. और संक्षेप में कहने से हम चाहते हैं कि वे हमारे समान बने, हमसे भी अच्छे बने। But if your children talk only little things, लेकिन अगर आपकी बात बच्चे केवल छोटी छोटी बातें कहते हैं तो when they go to school, they say, "Mummy, Daddy, bye, going to school." जब वे स्कूल जाने के समय कहते हैं मम्मी डैडी बाय हम स्कूल जा रहे हैं, When you give food, "Oh, Mummy, thank you for the food." खाना देने के समय कहते हैं मम्मी भोजन दिया इसलिए धन्यवाद, Then they go to bed, और सोने के समय and if they don't talk anything more than this, यदि उससे अधिक वे आपसे कुछ भी बात नहीं करते "Mummy, तो thank you for the food." मम्मी आपने खाना दिया इसलिए "Daddy, धन्यवाद, thank you for the cloth." पापा आपने कपड़े दिए इसके लिए धन्यवाद, "Mummy, bye, Daddy, bye." मम्मी बाय डैडी बाय। If they don't talk more than that, यदि इससे अधिक वे बात नहीं करते, how many of us will be very happy? हम में से कितने लोग अधिक खुश होंगे? Put up your hands. अपने हाथ ऊपर करें। If my child talk only 3-4 words, that's enough. I am very happy. मेरा बच्चा से 3-4 शब्द बोले उसी से मैं बहुत खुश हूँ। Are you happy about that? क्या आप इससे खुश रहेंगे? Nobody is happy. कोई भी खुश नहीं। So how much our heavenly God who came and died on the cross, he will expect that we should talk to him. तो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो हमारे लिए क्रूस पर आकर बलिदान हो गया, वो कितना अधिक चाहता है कि हम उससे बातें करें। So please come out of the experience of praying 10 minutes, maximum 15 minutes, 2 minutes, praying only before the lunch and dinner. इसलिए केवल भोजन के पहले का प्रार्थना करना 2 मिनट या 5 मिनट या अधिक से अधिक 15 मिनट प्रार्थना करना, ऐसे अनुभव से बाहर आ जाइए। Every child of God should pray at least for 1 hour. सभी परमेश्वर के बच्चों को कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना Those चाहिए। who want to be in the chosen group, जो लोग उस चुने हुए के झुंड में दिखाई देना चाहते हैं, we must pray another 1 hour with Jesus. यीशु मसीह के साथ मिलके और 1 घंटा प्रार्थना करना There are चाहिए। 2 kinds of praying. 2 प्रकार की प्रार्थना है। One is praying before Jesus. एक यीशु के पहले सामने प्रार्थना करना, Sitting before Jesus and telling all of the problems. यीशु के सामने बैठकर अपनी सारी समस्याएं उसको बताना, That is praying before Jesus. वो यीशु के सामने बैठ के प्रार्थना करने का There is अनुभव है। another thing, we're praying with Jesus. लेकिन यीशु के साथ प्रार्थना करने का और एक अनुभव है। In that prayer, we should not pray for our needs. उस समय हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करना। If we please God, यदि हम प्रभु को प्रसन्न करते we तो need not pray for our earthly blessing. They will come automatically. हमें भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, वो हमें अपने आप मिल I was जाएंगी। a believer for 7 years. मैं 7 वर्षों तक विश्वासी होकर रहा था। I never prayed for my earthly blessing or promotion.
मैंने कभी भी अपनी भौतिक आशीषों के लिए पदोन्नति के लिए प्रार्थना नहीं की, but it automatically came. लेकिन वो अपने आप से मिल गया। What I did was, मैंने क्या किया था? I don't say that I was a saint because of that God was blessing me. मैं ये नहीं कहता कि मैं एक संत था इसलिए प्रभु ने मुझे आशीष I किया। had a habit. मेरी एक आदत थी, Every day I used to correct my mistake. हमेशा मैं अपनी गलती को सुधार लेता था। The moment I do the mistake, immediately I will correct my life. कुछ गलती करने से मैं तुरंत सुधार लेता था। I was working in a factory for 7 years. 7 वर्षों तक मैं एक कारखाने में काम करता था। Sometimes I may give room for the lust of the eyes. कभी कभी मैंने आंखों की अभिलाषा को जगह दिया। Immediately I will go to the toilet तुरंत मैं टॉयलेट में जाता था and pray, Lord, forgive me. और प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे क्षमा Help कर me to दे, keep my eyes holy. मुझे अपनी आंखों को पवित्र बनाए That was रखने the के लिए only मदद good कर। thing I did. वही एक अच्छा काम मैंने I किया। had many mistakes, मेरे अंदर बहुत गलतियां थी, but every day I was very, very careful to correct my smallest mistake also. लेकिन प्रतिदिन अपनी छोटी से छोटी गलती सुधारने के लिए मैं बहुत सावधान था। Increment and promotion came automatically. तब अपने आप से मुझे पदोन्नति और वेतन का बढ़ावा You मिला। can also try that. आप भी ऐसा कोशिश कर So God is सकते a हैं, faithful God. क्योंकि परमेश्वर तो विश्वास Bible योग्य says है। if you seek the kingdom of God and the righteousness of God, all the other things will be added unto it. पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें तो ये सब वस्तुएं हमको मिल जाएंगी। From my experience, I am telling you, need not pray for your earthly blessing if you have a close walk with God. मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ, यदि परमेश्वर के साथ आपका निकट संबंध है तो आपको अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने की भी आवश्यकता Just नहीं, correct your life, केवल अपने जीवन को सुधारें, pray more, अधिक प्रार्थना share the करें, burden of Jesus. यीशु के बोझों को बांटे। Job prayed for his friends. अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना God की brought him out of all the captivities. और परमेश्वर उसकी बंधुआई को लौटा ले आया। So Jesus prayed the whole night, यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की, and disciples did not pray at all. चेलों ने तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं की। Next day, all kind of trial came. और जब कई तरह की परीक्षा आई, All kind of trial came. जब सब प्रकार की परीक्षा आई, Jesus took victory in every trial. यीशु मसीह ने हर एक परीक्षा में जय प्राप्त की। What about the disciples? लेकिन चेलों के विषय में क्या था? They became a failure in every trial. वे हर एक बात में असफल हुए। They did not take victory even in only one trial. एक परीक्षा में भी उनको जय नहीं मिली। When the soldiers came to arrest Jesus, जब सैनिक यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, Jesus asked, यीशु ने पूछा, "Hey, whom you are seeking?" तुम किसे ढूंढते हो? They said, "We are seeking Jesus." उन्होंने कहा, हम यीशु को ढूंढते हैं। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Yes, I am Jesus. मैं ही यीशु हूँ, Arrest me. मुझे गिरफ्तार कर लो, Let them go. Don't disturb them. उनको परेशान मत कर, उन्हें He छोड़ was दो। able to face the situation. He said, "I am Jesus. Arrest me." क्योंकि वो तो परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार था, उसने कहा, मैं यीशु हूँ। When we pray, we can face any situation boldly. जब हम प्रार्थना करेंगे तो किसी भी परिस्थिति का हिम्मत से सामना कर But what पाएंगे। about Peter? लेकिन पतरस के बारे में He said, "Lord, I am ready to die also with Jesus. उसने कहा कि मैं यीशु के साथ मरने के लिए भी All may तैयार run हूँ, away, but I will not run away." सब लोग भागने से भी मैं नहीं But भागूंगा। when the servant maid came and asked him, "Are you not one of the disciples of Jesus?" लेकिन जब वो सेविका ने आकर पूछा, क्या तू यीशु के चेलों में एक नहीं है? He said, "No, उसने कहा, नहीं, I do not know Jesus." मैं यीशु को नहीं जानता। Matthew 26:69 we read. मत्ती का सुसमाचार 26:69 में हम पढ़ते हैं, He said, "I am not a disciple of Jesus." उसने कहा, मैं यीशु का चेला नहीं हूँ। Verse 70, he said, "I do not know Jesus." 70 वचन में कहता है कि वो मैं यीशु को नहीं जानता। 72, he refused as he is a disciple of Jesus with the oath. Promise, I am not the disciple of Jesus. और 72 वचन में वो क्या शपथ खाकर कहता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। 74, he cursed Jesus. और 74 वचन में हम देखते हैं कि वो यीशु को धिक्कारने And लगा he said, "I am not the disciple of Jesus." और कहा, मैं उसका चेला नहीं हूँ। In Luke 22:58, लूका 22:58 में he is telling the soldier, "Man, hey, what man? What you are thinking?" वो सैनिकों से कहता है कि हे मनुष्य, तुम क्या सोचते हो? Please read. वो Luke वचन पढ़िए, 22:58. लूका 22:58। And after a while another saw him and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। Hey, man, I am not a disciple of Jesus. हे मनुष्य, मैं यीशु का चेला नहीं हूँ। What is the meaning? उसका अर्थ क्या है? अरे कितना बार बोला यार, यीशु मसीह का चेला करके बोल दिया, फिर पूरा और दोबारा पूछते रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं मैं? हाँ? क्या man, what you are thinking? हे मनुष्य, तू क्या सोचता है? He had the boldness to talk to the people, but he had not the boldness to accept that he is a disciple of Jesus. लोगों से बात करने के लिए उसको हिम्मत थी, लेकिन यीशु का चेला होकर अपने आप को कहने के लिए हिम्मत नहीं थी। If we don't pray, यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे we may not say that Jesus is not God, तो हम ये ऐसा तो नहीं शायद कहेंगे कि यीशु ईश्वर नहीं है, but by our actions we will deny Jesus. लेकिन अपनी क्रियाओं के द्वारा हम उसका इनकार करेंगे। We cannot prove that we are the true disciples of Jesus. हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम
उसके सच्चे चेले हैं। So in John 18:10 we read that यूहन्ना 18:10 में हम पढ़ते हैं, Jesus cut the ear of Malchus. यीशु जब पतरस ने मलकुस के पतरस। पतरस ने जब मलकुस के कान को काट दिया, What do you think? Did he try to cut only the ear? क्या आप सोचते उसने केवल कान को काटने का प्रयास किया था? Okay, the soldier has come, so I will cut his ear. ये सैनिक आया, मैं उसका कान काट दूंगा। Did he think like that? क्या उसने ऐसा सोचा? He wanted to kill him. That fellow shook his head and it went with the ears. वो तो उसको पूरी तरह से मार डालना चाहता था, उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन मोड़ ली, इसलिए केवल उसका कान कटा। Jesus said, "Love your enemies, do good unto them." यीशु ने कहा था शत्रुओं को प्रेम करो, उनके लिए भलाई करो, But he could not practice because he was not praying. लेकिन वो तो प्रार्थना नहीं करता था, इसलिए इस बात को अभ्यास में But नहीं ला what about सका। Jesus? फिर यीशु के बारे में क्या है? Luke 22:51 says, लूका 22:51 में कहा गया है, he took that ear उसने उस कान को लेकर and fixed it. उसे लगा दिया He did the best miracle on that day. और उस दिन सब सर्वोत्तम चमत्कार किया। It's a small miracle, एक छोटा सा चमत्कार है, but I say it's a big miracle. लेकिन हम कह सकते हैं कि एक बड़ा चमत्कार है। Why? क्यों? All the other miracles he did for those who came to him, बाकी सारे चमत्कार उसने उनके लिए किए जो उसके पास आए who थे, believed him, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था requested it for healing. और जिन्होंने चंगाई के लिए निवेदन किया था। But here, परंतु यहाँ the पर soldier is the number one enemy. He has come to arrest him. अभी वो सैनिक तो उसका एक नंबर का शत्रु है, वो तो उसको गिरफ्तार करने के Even लिए आया after है। the ear is cut, he is not humbling. कान कटने के बावजूद भी वो अपने आप को दीन नहीं करता। Did he believe Jesus? क्या उसने यीशु पर विश्वास Did he किया come था? to Jesus? क्या वो यीशु के पास Did he आया? request Jesus to pray for him? क्या उसने यीशु से विनती की कि मेरे लिए प्रार्थना करो? Standing with anger, "Hey, मेरा कान को काट दिया." वो बड़े क्रोध से कहा था कि तुमने मेरा कान काट दिया, But Jesus voluntarily went and healed him. लेकिन यीशु ने स्वेच्छा पूर्वक जाके उसकी सहायता की। He said, "Love your enemies, do good unto them," and he was able to do that उसने कहा अपने शत्रुओं को प्रेम करो, उनके लिए भलाई करो, और वो ऐसा कर भी पाया because he prayed the whole night. क्योंकि पूरी रात उसने प्रार्थना की थी। So like that, we can see so many things. ऐसे हम कई बातों को देख सकते हैं। Peter followed Jesus, पतरस यीशु के पीछे हो लिया, but far off. लेकिन बहुत दूर से। Now Jesus is arrested. अभी यीशु को जब पकड़ लिया, Soldiers are taking to the palace to be inquired. जब उसकी पूछताछ करने के लिए उसको महल में ले जा रहे Jesus, थे, though he ran away, Peter, though he ran away, he came back again. पतरस भाग गया था, फिर वापस आया, But he is following Jesus afar off. लेकिन वो दूर से उसका पीछे चल रहा If था। the soldiers are going near the gate, he is standing in the kitchen. He is following, but afar off. अगर सैनिक लोग उस गेट के पास खड़े तो वो किचन के उस तरफ खड़ा था, बहुत दूरी से देख रहा था। If we do not pray Jesus, यदि यीशु के समान प्रार्थना ना करे तो we may follow Jesus, हम यीशु के पीछे तो हो सकते हैं, but afar off. लेकिन दूर से। When sickness come, problem come, we will decide to go after man, not after God. जब बीमारी या समस्या आती है, हम मनुष्य के पीछे जाने का फैसला करेंगे, प्रभु के पीछे नहीं। We may know all the doctrine, हम सारे उपदेशों को तो जानते होंगे, we will follow afar off. लेकिन हम दूरी से उसका पीछा करेंगे। Like that 7, 8, 9 things we can say as to what was the difference between Peter and Jesus. ऐसे पतरस और यीशु के बीच के अंतर को देखने के लिए 7-8 बातें हम कह सकते हैं, But what about Jesus? लेकिन यीशु के बारे में कैसा When था? Jesus was hanging upon the cross, जब यीशु क्रूस पर लटक रहा था, at one occasion even the face of Father was hidden from him. एक संदर्भ में जब उसका पिता का चेहरा भी उससे छिप गया था, That was the only joy he had. वही उसका केवल एकमात्र He आनंद said, "You था। all may run away. उसने कहा सब छोड़ के I am भाग not जाइए, alone, मैं अकेला नहीं but हूँ, Father is with me, मेरा पिता मेरे because साथ I है, please God always." क्योंकि मैं सर्वदा परमेश्वर को That was प्रसन्न the करता हूँ। only great boldness he had. वही एक हिम्मत उसको थी, But at one occasion, because of the sin of the whole world, even the Father's face was hid from him. लेकिन एक संदर्भ में सारे जगत का पाप उसके ऊपर आने के कारण पिता का चेहरा भी उससे छिप गया। But Bible says he commended his spirit in the hand of the Father. लेकिन बाइबल कहती है कि उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में दे दी। In that suffering also, उस कष्ट के he समय was में भी very, very careful to practice every word of God. वो प्रभु के वचन का पालन करने के लिए बहुत ही तत्पर था। Bible says that बाइबल कहती है in Matthew 26:54, मत्ती 26:54 में, he was thirsty and he said, "I am thirst so that the word of God may be fulfilled." वो प्यासा था और उसने कहा मैं प्यासा हूँ ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। I think John 19:28. Okay. यूहन्ना Just 19 for का the है। fulfilling of the word of God, he said, "I am thirsty." प्रभु का वचन पूरा हो लेने के लिए वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। He need not say that, उसने ऐसा तो नहीं कहा, but in the Bible it is already written. लेकिन बाइबल में वो पहले ही लिखा है। यूहन्ना 19:28। The scripture might be fulfilled. He said, "I am thirst." पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूँ। And when Peter cut the ear of Malchus जब पतरस ने मलकुस का कान काटा, in Matthew 26:54, मत्ती 26:54 में he explains Jesus explains his condition so nicely. यीशु उस स्थिति का अच्छी तरह से वर्णन करता है। Please, Matthew 26:54.
मत्ती 26:54। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होगी। But how then shall the scriptures be fulfilled that thus it must be? Jesus told Peter, यीशु ने पतरस से कहा, if I pray to my Father, यदि मैं अपने पिता से प्रार्थना He करूं, will presently give me more than 12 legions of angels. वो अपने स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। If I do like that, यदि मैं ऐसा करूंगा तो, the scripture will not be fulfilled. लेकिन वो वचन पूरा नहीं होगा। So he said, I can ask and Father will give 12 legion of angels. उसने कहा कि यदि मैं पिता से मांगू तो 12 पलटन से भी अधिक सेना को मेरे लिए भेज देगा। 1 legion means 6,000. एक पलटन कहने से उसमें 6000 सैनिक हैं। In Roman they call it legion. In 1 legion means 6,000 soldiers. और रोमन सेना में इस प्रकार से कहा जाता है कि एक पलटन में जो 6000 सैनिकों की सेना रहती है। Jesus said, if I pray to the Father just one word, He will send 72,000 of angels immediately. यीशु ने कहा कि यदि मैं पिता से प्रार्थना करूं वो तुरंत ही मेरे लिए 72,000 स्वर्गदूतों को भेज देगा। The Bible we read that बाइबल में हम पढ़ते हैं, one angel came and killed 1,85,000 soldiers in the Assyrian army. एक स्वर्गदूत ने आकर अशूर की सेना के 1,85,000 सैनिकों को मार डाला। They are more powerful than that also. वे तो उससे भी अधिक सामर्थी हैं। If you make a calculation, यदि हम ऐसा हिसाब लगाएं, one angel can give 1,85,000. एक स्वर्गदूत यदि 1,85,000 सैनिकों को मार दे 72,000 multiplied by 1,85,000. तो 72,000 गुना 1,85,000 It comes to 1,333 crores. 1,333 करोड़ तक हो जाएगा। At that time, the population was much less than that. उस समय की जनसंख्या भी उतना इससे कम थी। So even now, the population is very less. अभी भी जनसंख्या उससे बहुत कम है। On those days, you started from Adam. वो number आदम one. के पहला नंबर पहली संख्या आदम से आरंभ करे थे। Population would have been much lesser than 1,300 crores. तो उस समय की जो जनसंख्या 1,300 करोड़ से भी बहुत So कम what थी। did Jesus say? यीशु ने क्या कहा, If I pray to the Father, यदि मैं पिता से प्रार्थना करूं God will send His angels. तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। They can destroy the whole population of this world. वो इस संसार की सारी जनसंख्या को मिटा सकते I am हैं। so powerful. मैं इतना सामर्थ्य, वो My इतना Father is ready to answer my prayer. मेरा पिता मेरी प्रार्थना को I उत्तर can देने के लिए destroy the तैयार whole है। world. मैं सारे संसार को नाश कर But सकता हूँ। Bible says I have to die on the cross for the sin of the whole mankind. लेकिन पवित्र शास्त्र कहती है सारी मानव जाति के पापों के लिए मुझे क्रूस पर मरना है। How it shall be fulfilled? How it shall be फिर fulfilled? ये बातें कैसे पूरी हो सकती है? So put your sword in the cover again. इसलिए तू अपनी तलवार को अपने म्यान में रख I am ले। ready to die. मैं मरने के लिए तैयार हूँ, Because he prayed the whole night. क्योंकि उसने पूरी रात प्रार्थना की। He had such an inner strength to do everything according to the word of God. सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए उसके अंदर इतना भीतरी बल दिखाई दिया। Dear children of God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the coming of the Lord is very, very near. प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। We should not take things easily. हम बातों को आसानी से न ले। Whether we are ready or not, Jesus will come. चाहे हम तैयार हो या ना हो, लेकिन यीशु आएगा। We must have a close walk with God. प्रभु के साथ हमको एक निकट संबंध होना We आवश्यक should not है। be in a place where God say, hey, just sit here. हम ऐसे एक स्थान में ना हो जब प्रभु कहे तो इधर ही बैठा रहे। Okay, you cannot pray. Okay, leave it. What to do? You are not praying. What to do? ठीक है, तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम इधर ही रहो। We should never come to that place. कभी भी हम ऐसे स्थान में ना Every आए। day God should come and tell, my son, share my burden. प्रतिदिन प्रभु आकर हमसे कहना चाहिए, मेरे बेटे मेरे बोझों को बांट। Cry for the perishing souls. नाश होने वाली आत्माओं के लिए Cry तू for प्रार्थना that कर। person, this person. इसके लिए उसके लिए तू रो। At least 1 hour we should pray, कम से कम 1 घंटा हम प्रार्थना करना है, sharing the burden of Jesus. यीशु के बोझों को बांटते If हुए। you want to be seen in the chosen group. यदि आप उस चुने हुए झुंड में दिखाई देना How चाहते many of us हैं, want to be seen in the chosen group? हम में से कितने लोग चुने हुए झुंड में दिखाई देना Shout चाहते हैं? hallelujah. हालेलुया बोलिए। Okay. God has seen our hands. प्रभु ने हमारे हाथों को देखा है, Devil also has seen. शैतान ने भी देखा है। So let us be firm in our decision. इसलिए हम अपने जो फैसले को हम जांचे। If you are faithful in the decision to share the burden of Jesus every day 1 hour, यदि प्रतिदिन 1 घंटा यीशु के बोझों को बांटने के अपने फैसले में आप स्थिर रहेंगे तो great miracles will take place. अब बड़े चमत्कार की बात होगी। In our family, miracles will take place. आपके परिवारों में चमत्कार होगा, Church miracle will take place. आपकी कलीसिया में चमत्कार होगा। Each and every one of us will arise and shine for His हम हर glory. एक जन उठ के प्रभु की महिमा के लिए चमक पाएंगे। May God help us to practice it, help us to be in the chosen group, and help us all to be caught up with the soon coming. इस बात को अभ्यास में लाने के लिए, उस चुने हुए झुंड में दिखाई देने के लिए, प्रभु के आगमन में दिखाई देने के लिए प्रभु आप ही हमारी सहायता करें। Praise the Lord.